right? And before starting, I want to give a disclaimer, right? That disclaimer is कि यहाँ पे उत्तराखंड में there is a 48-hour alert because of the fact that there is continuously rains. ठीक है, तो हो सकता है बीच में नेट ब्रेक डाउन हो जाए या कुछ हो जाए. सो प्लीज़ बी पेशेंट, मैं दोबारा लॉग इन कर लूँगा, राइट? तो ये मैं पहले बताना चाह रहा हूँ. एंड यहाँ पे कॉन्स्टेंटली बारिश हो ही जा रही है. सो ओके, एंड जो लोग भी मिस करेंगे इसको तो दे कैन ऑल्सो सी द रिकॉर्डिंग. मैं रिकॉर्डिंग इसकी दे दूँगा, राइट? ठीक है. सो लेट मी जस्ट present you the screen. Fine. So is it possible to have the orientation in English? Anand, it is majorly in English, but अब समवेयर डाउन द लाइन तो यार थोड़ा तो चलता ही है, राइट? बिकॉज अ लॉट ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आर ऑल्सो देयर, बट आई विल ट्राई टू स्पीक मोर ऑफ इन इंग्लिश, राइट? बट वेर एवर यू हैव डाउट इन हिंदी यू कैन आस्क, आई विल रिपीट दैट इन इंग्लिश. Okay, so I think now 5 minutes have been over, so let us now start off the session. ठीक है, so I think the screen, you all can see the screen, right? Yeah, just okay, fine. Just okay, so let's go straight to the screen. Okay, so here is the screen which you all can see. This is the main slide. So hi guys, my name is Sumit and I welcome you all to the RANBHUMI course, right, where we will be covering the PSIR paper number 2 and especially paper number 2B. इसको हम लोग यहाँ पे cover करेंगे, right? And we'll be seeing that what should be the approach to study this particular paper, right? Now first thing first, this paper is actually the decider. What happens is कि हम लोग we give a lot of time to paper number 1 and in major of the coachings there is a focus majorly on 1A, and that is why you will see most of us get exhausted while studying this paper 1 only, and then what happens is that in paper 2 we just write very shabby and very casual answer. As a result you will find that there is a decrease in paper number 2 marks, and as a result overall क्या होता है कि हमारा marks कम रहता है, right? So that is why I thought that let us now start off with paper number 2 and we will be going ulta, paper 2B, 2A, 1B, 1A ऐसे कवर करेंगे, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर कोर्स वील बी डिस्कसिंग व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 2. नाउ सबसे बड़ी चीज़ और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डिकोड द सिलेबस, राइट? बिकॉज इफ़ यू डोंट डिकोड द सिलेबस देन इट बिकम्स वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि पेपर नंबर 2 में पता ही नहीं चलता. लोग कहते हैं IR, बट नॉट एग्जैक्टली इट्स IR, राइट? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज स्टैटिक. स्टैटिक बहुत सारा है. सो हम सबसे पहले पेपर 2B का सिलेबस देखेंगे एंड आई हैव डिकोडेड इट फॉर यू. तो दिस इज बेसिकली इंडिया एंड द वर्ल्ड, राइट? इंडिया एंड द वर्ल्ड का सिलेबस है, राइट? एंड इफ यू सी, so it talks about Indian foreign policy, right? Basically that what are the determinants of the foreign policy, what are the institutions of the foreign policy, what are the continuity, what are the change in the Indian foreign policy, right? All these things have been given by the UPSC syllabus. So this can be decoded to the Indian foreign policy, static as well as dynamic. ठीक है, static part as well as the dynamic part. So static as well as dynamic part हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी को यहाँ पे कवर करेंगे. एंड मेजरली स्टैटिक पार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज द डायनेमिक पार्ट, राइट? वाई आई एम सेइंग दिस वी विल सी इन अ सम टाइम, अभी हम देखेंगे, राइट? सेकेंड इज अबाउट NAM and its current development. So I have classified into themes, right? The second theme is NAM and current developments, right? Current developments is much more important क्योंकि NAM को वैसे हम लोग स्टैटिक में पढ़ते हैं. So again static plus current affairs. Third theme if you see, यहीं से third topic देखेंगे. If you see the 2B का third topic, India and the South Asia, right? And in this India and South Asia, right, we will be seeing SARC, right? Its past performance, its future prospects. Then we'll be seeing the Look East policy,
right? And then majorly we will be seeing what are the border challenges, right? If you see border disputes, illegal cross border migration, ethnic conflicts, insurgency, border disputes, so ये पूरा आता है आपका border challenges में, right? This is about the border challenges, ठीक है? So अब border challenges यानी we can classify this into South Asia, SAARC plus Look East plus border challenges. This is the main, you can say, the third theme. This is the third theme we have discussed. Theme 1, theme 2, theme 3. Next is theme 4, Africa, Latin America, least developing countries, new economic international order, right? New international economic order, WTO and its challenges. This is basically about the third world. So basically I call this as India and the third world, right? Next is called as India and the first world, right? That is major powers, that is Japan, right? And also called as Russia, China, India and US. So all these comes under, you can say, theme 5, theme 6, theme 7. And these themes are very important, the ones which have been highlighted. अगर आप देखोगे theme 3 में यहाँ देखोगे तो South Asia, ठीक है, इस साल बहुत सारा chances है, right? Then comes theme 5, USA, Japan. Theme 6, China, important है, ठीक है. Then comes Russia, and then theme 8 is about India and UN, right? India and UN, India's role, especially in UNSC, P5 की demand, right? And now this can be combined with 2A, क्योंकि 2A में general UN दिया है, UN and its problems, right? But this is India and UN. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? You have to combine it with what? You have to combine it with paper 2A. तो ये आपका थीम 8 है. Then comes theme 9. थीम 9 में क्या है? It's about nuclear question, India and the nuclear question, and most importantly, what are the changing perspective? यानी no first use policy, India का nuclear doctrine, right? Again, combine this with 2A because of the fact that nuclear thing is also present in 2A. 2A में भी ये चीज़ दी गई है, right? 2A में भी ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है? Then comes theme 10, that India and its neighbor. Again, very important and इस साल के लिए and for the coming years, AFPAC, Afghanistan and Pakistan and its collusion with Taliban and all that thing, जिसको we will be discussing. Then you can say small topics like Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and Myanmar. यानी India and neighbor is a theme, right? Another theme is Indian Ocean region. Very, very, very important for the upcoming years in exam. एंड क्वेश्चन आपका लिटोरल कंट्रीज से सेट होगा, बेसिकली द इंटायर चंक जो आपका इंडिया का, द इंटायर एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन, राइट? ऑल दिस थिंग्स, दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पूरा का पूरा रीजन. सो इसमें आशियान भी आएगा, ईस्ट एशिया भी आएगा, राइट? कॉर्ड आएगा, ऑकस, रिसेंटली यू हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ ऑकस. तो all these things become again very very important and majorly important of the developed world, that is France, Germany, their interest in the Indian Ocean region, okay? And this is majorly to counter China, right? Because there is a rise of China, okay? Counter rise of China. Next important thing is the last theme, that is world order, India and the world order in general, and link it to globalization. So basically it's globalization, world order and India's vision of the world order, right? So India का क्या vision है, इस पे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. So these are लगभग roughly 12 themes जिसमें मैंने इसमें बांटा है, right? And all this is directly from the syllabus. If you see India and the nuclear question, तो ये देखिए, this is again from the syllabus. What is the changing perceptions and the policy? India की no first use policy, India का nuclear doctrine, right? Do we need to adopt a new nuclear doctrine, right? So इस टाइप की बात करनी है. Then you will be finding recent development, that is India's position in the recent crisis in Afghanistan, वही AFPAC वाला region, West Asia, Iraq, right? Growing relations with US, Israel, vision of a new world order. So vision of a new world order is much much important, ठीक है? Is this absolutely clear यहाँ तक? किसी को भी decode syllabus में अंतर, मतलब किसी को भी कोई different लगा, right? Anyone found it very very hard या कुछ इस टाइप का, ठीक है? तो इस टाइप से हमको syllabus को देखना है. So while looking for anything, wherever you are reading, ask yourselves कि ये कहाँ पे fit आता है, right? And this is majorly India's role. Remember, the paper 2B is India and something something, India plus XYZ, right? तो ये यहाँ पे you should be knowing this, ठीक है? India का role is very very important and what are the perspectives, right? So सारा कुछ हम लोग India के perspective से ही देखेंगे, right? So this is the decoding of the syllabus and roughly we will be keeping around about 20 to 25 classes, more and less चलेगा, right?
Now let's move forward and let us see the next thing जो होना चाहिए, that what are the prerequisites. What are the prerequisites to study paper 2B, right? And the biggest prerequisite to study paper 2B is what? The biggest prerequisite to study paper 2B is the topic number 2A. Topic number 2A आपको पता होना चाहिए from topic number 5 of paper 2A, that is approaches to study international relations. You should be knowing this. You should be knowing this at all cost, and especially what are the approaches which you should be knowing about, that is what are the major theories. Theories of IR आपको पता होनी चाहिए. Without these theories of IR, you cannot write an answer in 2B. If you write, that will be a very general studies वाला answer which is expected in GS paper number 2. GS paper number 2 में आपसे ये चीज़ expected है, right? And you should not be doing this in paper number 2, especially of PSIR. And that is one of the reasons why most of the, you can say, aspirants or the ones who are writing mains, they are not able to write good paper 2 answer, क्योंकि वो लोग at the end of the day इसको एक simple एक general studies का paper बना देते हैं, right? Because of the fact that they are not able to interlink these theories. So I expect कि आप लोग क्या है, you will be writing all these theories, right? You will at least एक बार आप लोग main key point and main scholar देख लेंगे. And कौन सी theories है? तो first is the realist theory, right? जो आपको देखना है, जिसमें आपका critical classical realism, neo-realism, neo-classical realism, post-colonial realism. Then comes the liberal theory, right? जिसके अंदर you have to see different schools like liberal institutionalism, sociological liberalism, functionalism, neo-functionalism, interdependence, democratic peace theory, right? Complex interdependence. Then comes the school of feminism. Then उसके बाद there is a combination of realist and liberal, that is English school, which was you can say led by scholars like Hedley Bull, right? जिनका मानना है कि ना ही complete anarchy है, ना ही complete you can say order है, and that is why we have what is called as anarchical society. So he talks about basically anarchical society, right? The school of anarchical society. Then comes the school of social constructivism, which believe that fundamental relations in IR are bound by the social identities, the norms, which are bound to change, right? Then comes the postmodernism school, who believe that everything is a meta-narrative, right? Everything is a discourse, right? So postmodernism school is important. Then comes very important school called as Marxism, right? And इसके अंदर भी 3 different schools है. The one is the instrumentalist school, also called as the dependency theory, right? Then comes the Gramscian school, which is also known as the hegemonian or the hegemonic school, hegemonic theory, right? Then comes the critical school, also led by Andrew Linklater, जो लोग ह्यूमन इमेंसिपेशन की बात करते हैं, तो ये टॉक अबाउट मॉरल बाउंड्रीज वगैरह इन सब की बात करते हैं, राइट? देन वी हैव द साइंटिफिक थ्योरीज, जिसके अंदर आपका जो सबसे पहले आता है द सिस्टम थ्योरी, राइट? सो सिस्टम थ्योरी के अंदर क्या होता है, दे टॉक अबाउट द 10 मॉडल्स ऑफ IR, दे ट्राई टू डिफाइन द IR थ्रू दीज 10 मॉडल्स. देन उसी के अंदर गेम थ्योरी, एंड इन गेम थ्योरी वी हैव चिकन्स गेम, प्रिजनर्स डिलेमा एंड ऑल दैट थिंग. तो ये आपको पता होना चाहिए. एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग द मेन की पॉइंट एंड द मेन स्कॉलर. इसमें आपको ये चीज़ तो पता होनी ही चाहिए, राइट? एंड वन एडवाइस, इफ़ यू डोंट वांट टू रीड इट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नोट्स, तो यू कैन रीड इट फ्रॉम विकीपीडिया. अगर आप विकीपीडिया से हर एक थ्योरी का, इवन इफ यू रीड द फर्स्ट पेज, you know the main key point, you know the main scholar, that is good to go. You all can write this in paper number 2B. पेपर नंबर 2B में आप बहुत ही ईजिली वाइल राइटिंग एन आंसर इन सबको इंटरलिंक कर पाओगे. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, सो आई एम अफ्रेड देन मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, राइट? सो ये चीज़ है. अभी हम देखेंगे, आई विल बी शोइंग यू एग्जाम्पल्स कि कैसे पेपर 2B में इस चीज़ का इंटीग्रेशन किया गया था, राइट? एंड तृप्ति मैम, आई थिंक शी गॉट AR 18 and 320 समथिंग मार्क्स इन PSIR. सो उनके आंसर्स को हम लोग एनालाइज करेंगे, राइट? एंड वी विल बी सीइंग दैट हाउ शी इंटीग्रेट्स राइटिंग ऑल दीज थ्योरीज इन 2B, राइट? सो 2B के आंसर्स जब आप लिखेंगे तो ये सभी थ्योरी आपको यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है? सो इज़ दिस एब्सोल्युटली क्लियर? यहाँ तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है, ठीक है? तो ये एक प्री रिक्विजिट है.
किसी का भी कोई डाउट है इन 30 सेकेंड ही और शी कैन आस्क। हाँ, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेशन होता है उसको कौन से थीम में कवर करेंगे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंडिया एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो तो यस पेपर सर। 2A का पार्ट हो गया ना। बेसिकली मेजर थ्योरीज, जो आपका IR वाला सेक्शन हो गया, आशियान हो गया, हाँ जी। सार्क हो गया, राइट। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो ये वाला पार्ट है गया ना, ये तो जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया। देखो तुम, ये रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, राइट। ये देखो, ठीक है। कैन यू सी 10th टॉपिक दिख रहा है? यस सर। रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पार्ट है ना, ठीक है। यस सर। हाँ, ठीक है। तो EU, आशियान, APEC, तो ठीक है, जो इंडिया सेंट्रिक होगा वो इसी में कवर कर इसी में लेंगे ही मतलब? कवर करते हैं, इसी में ही आपको ठीक। करना है, ठीक है। इंडिया एंड ठीक। यूरोपियन यूनियन हो गया, राइट। इंडिया एंड आशियान हो गया, राइट। अब ये आशियान यस। दोनों में कवर्ड है। आशियान, बेसिक्स ऑफ आशियान हम कवर करेंगे ही, राइट, दैट हाउ इज ए आशियान अ वेरी वेरी सक्सेसफुल मॉडल, राइट। बट देन विल ऑल्सो बी सीइंग इंडिया एंड आशियान, दैट इज एक्सपेक्टेड, राइट। सो इसी में यू कैन ऐड APEC, यू कैन ऐड नाफ्ता, राइट, यू कैन ऐड यस। TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये यस। चीज़ है। यस। सिमिलरली इफ यू सी ठीक। 9 टॉपिक, देखो 9 टॉपिक क्या, यूनाइटेड नेशन, what was its यस। role, what did it do, what are the specialized agency of UN, right? But यस। see, in if I show you right over here, तो यहाँ पे भी इंडिया एंड UN आ रहा है, कहाँ गया? यस। जस्ट अ यस। सेकेंड, ठीक है। इंडिया, 6 सेकंड। टॉपिक, इंडिया एंड द UN सिस्टम, रोल इन UN यस। पीस कीपिंग, डिमांड फॉर परमानेंट सीट, ठीक है। दैट इज वाई आई सेड ना कि इसको यहाँ यस। पे भी कवर करना है। सो अगर आप देखोगे ठीक। 2A 2B काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है, राइट। जो ग्लोबलाइजेशन वट एवर वी स्टडी फ्रॉम इन टॉपिक नंबर 4, तो वो यू विल बी राइटिंग ए गुड आंसर वाइल राइटिंग टॉपिक नंबर 8, ठीक है। यस। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, डोंट थिंक कि बहुत ही ज़्यादा अलग है, राइट। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरलिंक थिंग, ठीक है। तो इंटरलिंक यहाँ पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट, ओके। ठीक है। और किसी थैंक का यू। कोई डाउट? ठीक है, चलो। सो इफ देर इज नो डाउट, then let us move forward and let me show you the screen again. ठीक है। सो दिस इज, वी हैव डिस्कस की व्हाट आर द प्री रिक्विजिट जो आपसे एक्सपेक्टेड है। सो प्लीज़ इन थ्योरीज को एटलीस्ट जल्दी जल्दी तो एक बार देख ही ले, राइट। नाउ कम्स द मेन थिंग इज दैट द स्कोप ऑफ आंसर राइटिंग, दैट how should we begin the answer writing, and when is the right time, right? But see, again I'll say one thing, people blindly write answer, which I feel is one of the most stupid things to do. Why it is one of the most stupid things to do? It's actually like you are working hard, right? You are working hard, ठीक है, but you are not getting results, right? देखो, see, if you want to learn anything in life, there are 3 ways to do it. What are the 3 ways to do it? The first way is कि आप सामने वाले कुछ कह रहा है, ठीक है, आपको, I am telling you, you do that, right? और आप you learn the art, ठीक है, from a teacher. The second way to learn the thing is what? You see someone doing it and you are aware and you do it and you do it, ठीक है, हो गया, आप सीख गए, किसी को देख के सीख गए। थर्ड, खुद वो चीज़ करो, फेल हो एंड देन सीखो, राइट, ठीक है। नाउ सीखने के सभी तरीके सही हैं, राइट, बट स्मार्ट पीपल कौन से में बिलीव करते हैं? A and B। फर्स्ट जो मैंने बताया कि जो दूसरा कह रहा है उससे सुन लो, किसी का देख लो एंड देन सीख के सीधा आप कर दो, तो सबसे कम मेहनत आपको फर्स्ट एंड 2 में ही आएगी, राइट। एल्स पेपर थर्ड मेथड से अगर आप जाओगे, सो यू विल बी हाई चांसेस कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, क्योंकि आपको यू आर ट्राइंग टू गेट द कीज राइट, बट वो हो ही नहीं रहा है। तो इट्स वेरी, यू कैन से द चांसेस आर वेरी वेरी लेस दैट यू गेट द कीज राइट टू दैट लॉक, ठीक है। तो एंड आप फंस जाओगे, ठीक है। नो डाउट यू हैव सो मेनी कीज, आप कोई ना कोई की तो लगेगी ही, ठीक है। तो सी से सीखोगे, बट ये नहीं पता कब सीखोगे, ठीक है। सो दैट इज द सेम प्रिंसिपल विच आई अप्लाई वाइल टीचिंग समवन या वाइल आंसरिंग एनी क्वेश्चन ऑन आंसर राइटिंग। जब भी मुझसे कोई स्टूडेंट कहता था आंसर राइटिंग लिखूँ, आंसर राइटिंग करूँ, राइट, सो आई नेवर से स्टार्ट आंसर राइटिंग, आई नेवर, राइट। एंड in fact answer writing is something which should be done at a very last stage of your preparation, right? And उससे पहले there are certain kind of prerequisites जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, so that you can easily, you can say, overcome the roadblocks
टू आंसर राइटिंग. एंड सबसे पहला क्या है आंसर राइटिंग के लिए इज द कंटेंट, राइट. इफ यू डोंट हैव गुड कंटेंट एंड इफ यू आर गोइंग टू जस्ट राइट द आंसर्स, नो यूज़. क्योंकि यूपीएससी 13,000 के 13,000 बच्चे जो मेंस देते हैं उनको सेलेक्ट नहीं करता. ओनली द पीपल विद गुड कंटेंट उनका ही सिलेक्शन होता है, राइट. एंड देन कम्स द फ्लो. इवन इफ some people have good content but they lack the flow, तो अगेन एक बैड आंसर कहलाता है. सो कोई भी एक अच्छा आंसर कम्स ऑफ टू थिंग्स. वन इज द कंटेंट, सेकेंड इज द फ्लो, राइट. आर यू गाइज एबल टू सी आई एम राइटिंग ऑन स्क्रीन? क्या स्क्रीन पे कुछ पेन चलता हुआ दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, अब दिख रहा है, राइट. ठीक है, यस, नाउ यू विल बी सीइंग. अरे यार, आई हैड शेयर्ड विद यू रॉन्ग. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, अब दिखेगा आपको, राइट. सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट, चलो ठीक है. सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि कंटेंट प्लस फ्लो, ठीक है, बोथ द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इफ यू डोंट हैव कंटेंट यू आर गॉन, इफ यू डोंट हैव फ्लो यू आर गॉन, राइट. सो अगर दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठा, सो यू कैन ईजिली सेल थ्रू. सो फर्स्ट एम शुड बी अबाउट गेटिंग गुड कंटेंट, राइट. अब गुड कंटेंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कहाँ से क्या करना है, राइट. सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे. बट द मेजर थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज द फ्लो, राइट. अ फ्लो इज समथिंग, राइट, जो कोई सिखा नहीं सकता. इट्स लाइक अ सॉन्ग. सॉन्ग को आपको कंपोज करना है, वन इज द लिरिक्स. तो लिरिक्स तो आप कुछ भी लिख दो, राइट, हाँ है ना. बट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज द रिदम. दैट रिदम, दैट धुन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट you when you listen a lot of songs, then only you can get that rhythm, right. And for that, very 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 important is to read a lot of toppers copy, right. If you don't read a lot of toppers copy, especially people scoring 320 plus, you will never get to know what actually is required. And एक बार I was listening to a top, ठीक है, मनीष कुमार सर की मैं सुन रहा था, and उन्होंने बोला था that in exam you can use just two things, just one thing, either your pen or your brain. एक ही चलता है, ठीक है. अगर आपने दिमाग चलाया तो पेन नहीं चलेगा, पेन नहीं चलेगा तो आंसर नहीं लिखोगे, आंसर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, गेम ओवर, राइट. एंड इफ यू यूज योर पेन यू कैनॉट यूज योर ब्रेन. दैट मीन्स यू हैव टू हैव दैट मॉडल फ्रेमवर्क वेरी वेरी यू कैन से रेडी, पहले से ही रेडी करके जाना है. एंड जस्ट इट्स अबाउट सेटिंग दैट बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है. जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे आप यू कैन फॉर्म एन आंसर, राइट. यू कैन फॉर्म एन आंसर देन एंड देयर, ठीक है, वहीं पे आप आंसर्स को फॉर्म कर सकते हैं. तो इसके लिए टॉपर कॉपी इज अ मस्ट, राइट. इट्स एनालिसिस, सी हाउ इंट्रो इज रिटन, राइट, सी हाउ यू कैन से द कंटेंट इज बिल्ट, राइट, कंटेंट इज रिटन, एंड सी द फ्लो. कंक्लूजन कैसे लिख रहे हैं, इंट्रो कैसे लिख रहे हैं, इन सब पे नज़र होनी चाहिए. दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से बिफोर राइटिंग योर वेरी फर्स्ट आंसर you should have read at least 75 to 100 आंसर्स. 75 से 100 आंसर्स आपको पढ़े होने चाहिए. अगर उससे पहले if you are touching your pen to write, no point. It's better you build your content. कंटेंट पे बिल्ड करें, एंड कंटेंट पे भी कैसे बिल्ड करना है ये भी आपको कौन सिखाता है. दिस इज ऑल्सो टॉट टू अस बाय द टॉपर्स नोट्स. वी विल बी सीइंग टॉपर नोट्स वगैरह को एनालाइज करेंगे, ठीक है. तो कंटेंट भी पता चल जाएगा क्या कंटेंट लिखना है. फ्लो भी टॉपर्स कॉपी से यहाँ पता चल जाएगा. एंड फाइनली यू नीड टू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. पहले इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपने देख लिया, एनालाइज कर लिया. इफ यू हैव सेग्रीगेटेड PYQs, राइट, विच आई हैव, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज पेपर सेक्शन 2B, राइट, इंडिया एंड द वर्ल्ड. तो अब इसमें अगर आप देखोगे रिसेंटली किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, तो अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड चेंज वाले पार्ट का देखो, सो इंडियाज करंट फॉरेन पॉलिसी मार्क्स अ सिग्निफिकेंट एंड क्वालिटेटिव शिफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस रेजिम्स. आपको ये चीज़ डिस्कस करनी है. सो बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट द मोदी फॉरेन पॉलिसी, एंड इसी से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे. एंड रिसेंट टाइम्स में कैसे फॉरेन पॉलिसी में चेंज आया इन लास्ट 10 years, राइट. Second, do you agree with the view that Indian foreign policy is increasingly being shaped by a neoliberal outlook? अब तुम्हें neoliberalism पता ही नहीं है in paper 1A, paper 2A, how will you able to write? Right? So that is why I say paper 2A को theory वाला part आपको पढ़ना है, right? Right? तो at least 3-4 साल के पेपर क्वेश्चन तो देखो,
राइट. इफ़ यू सी, अब पुराने क्वेश्चन तो चलो ठीक है यार कि आ रहे हैं, ठीक है, दैट कोल्ड वॉर वाली पॉलिसी वगैरह, ठीक है, वो तो चलो इज पार्ट ऑफ अ स्टैटिक. बट सी इन रीसेंट टाइम्स हाउ दे आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस. तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. एंड 2019 18 इनका भी अभी हम एनालाइज करेंगे पेपर. ये सारे पेपर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, राइट. ठीक है. सिमिलरली इफ यू सी, इसी टाइप का कुछ पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट इंडियन फॉरेन पॉलिसी कुड हैव मैच्ड विद द फास्ट चेंजिंग इंटरनेशनल सिस्टम, राइट. अब ये पुराना क्वेश्चन है, उस टाइम में कुछ और चल रहा था इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह में, ब्रिक्स वगैरह का फॉर्मेशन, राइट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह, तो उस टाइप का अलग हो सकता है, राइट. बट स्टिल, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है. तो ये आपको यहाँ पे पता चलेगा व्हेन यू हैव एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. ठीक है, राइट. सी नेक्स्ट, India is often said to have a rich strategic culture. So this over here you have to tell about what are the realist elements in the Indian foreign policy, right? And right from the days of Kautilya, ठीक है, and उससे भी अगर आप पहले बताना चाहें, उसके बाद you can talk about the foreign policy during the Guptas वगैरह से, ठीक है. तो strategic culture आपको highlight करना है, and even during the times of इंदिरा गांधी जी, ठीक है, तो ऐसे आपको बताना है, right? And in the present times as well, ठीक है. तो ये क्या है, दैट इज़ वाई आई से वेन एवर यू वॉन्ट टू राइट एन आंसर और वेन यू वॉन्ट टू स्टडी, यू हैव टू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो देन दैट इज़ वेरी वेरी डेंजर, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू NAM, राइट, डिफरेंट फेजेज एंड करेंट रोल, सी वॉट इज द लेटेस्ट क्वेश्चन, सी डायरेक्ट कमेंट ऑन इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नॉन अलाइन मूवमेंट एंड इट्स कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, राइट. किस टाइप से बात आती है, सी अगेन डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ NAM इन द कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट. घुमा फिरा के वही पूछ रहा है, राइट. इफ़ यू सी, राइट, ठीक है. तो ये सब चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, राइट. हम भी डिस्कस करेंगे, बट स्टिल आई सजेस्ट यू दैट फर्स्ट एटलीस्ट नाइसली अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग देखें, राइट. यू शुड बी सीइंग दैट. जस्ट अ सेकंड, समवन हैज एंटर्ड, ठीक है, ठीक है. तो ये हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है. एवरी पॉइंट शुड बी नोटेड ऑन दिस, ठीक है, एक एक पॉइंट, ठीक है. अभी मैं और भी दिखाऊंगा कैसे एनालाइज करेंगे 1920 का, राइट. नाउ कम्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज द टॉपर कॉपी एनालिसिस, राइट. टॉपर कॉपी एनालिसिस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इवन जो टॉपर के नोट्स है, शॉर्ट नोट्स विच आई विल बी प्रोवाइडिंग विथ यू, एंड देर आर लॉट अवेलेबल ऑन इंटरनेट ऑल्सो, राइट. यू कैन टेक अ लॉट ऑफ गुड and very you can say good strategies from those paper, right. So let us see some topper copy and then you will then you yourself will able to realize, ठीक है, कि क्या and कैसे करना है. So just I'll be sharing with you certain things, right. Just a second, ठीक है. So let's see, चलो सेंट्रल एशिया पे ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये तो क्लास का है, ठीक है. बट स्टिल चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं. और लॉट ऑफ यू आर आस्किंग, ठीक है. तो ये तो बात की बात करते हैं, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड, इसमें है कोई टॉपर कॉपी, यस, सी. तो क्वेश्चन वाज, ये तृप्ति मैम की है, 320 मार्क्स. चैलेंजेस बिफोर द यूरोपियन यूनियन प्रोजेक्ट, EU के सामने क्या क्या चैलेंजेस है. सी नाउ इफ़ यू सी टॉपर कॉपी, इट विल टेल यू हाउ टू राइट द आंसर. टॉपर कॉपी एनालिसिस करोगे तो आपको दिख जाएगा हाउ टू राइट एन इंट्रो. एंड सी, इनका इंट्रो पढ़ो, यू विल रियली अप्रिशिएट दैट हाउ शी हैज़ यूटिलाइज्ड द यूरोपियन यूनियन में 2A वाला पार्ट. सी यूरोपियन यूनियन को GS वाला स्टूडेंट कैसे डिफाइन करता कि इट इज़ अ यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ 28 स्टेट्स विच अलाउ फ्री ट्रेड अमंग देमसेल्व्स, राइट. इस टाइप की डिफाइन करते हैं, ठीक है. बट सी इन PSIR हाउ शी हैज़ इंट्रोड्यूस दैट यूरोपियन यूनियन इज अ मॉडल ऑफ सुपरा नेशनल इंस्टीट्यूशन built upon the functionalism, neo-functionalism institutional principles of the liberal school of IR. देखा, this is what I was talking about, जो 2A का interlinkages in 2B है, right. वो भी इंट्रो सही होता जो अगर आप लिखते कि यूरोपियन यूनियन इज अ यू कैन से इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 28 यूरोपियन स्टेट्स, राइट, विच टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ यू कैन से इकोनॉमी, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पीपल, इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते थे, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल, राइट. बट वो एक GS का इंट्रोडक्शन होता. यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन हुआ है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है एक IR की थ्योरी से. अब किसी को यही नहीं पता इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, फंक्शनलिज्म क्या है, नियो फंक्शनलिज्म क्या है, तो वो कैसे आंसर करेगा. लिबरल स्कूल ऑफ IR क्या है, तो कर ही नहीं सकता, ठीक है. सो ये एक बहुत ही पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट का आंसर है विच आई हैव फाउंड, राइट. देन इंट्रो कर दिया, शॉर्ट सा स्वीट सा इंट्रो, ज़्यादा यहाँ पे भसड़ नहीं करनी, डोंट स्पेंड टू मच टाइम,
एक्सेलेंट इंट्रो, मजा आ गया. देन जंप ऑफ टू द मेन थिंग, क्योंकि एक्चुअली में पैसा बॉडी का मिलेगा आपको, सॉरी पैसा बोल रहा हूँ, ठीक है, मार्क्स बॉडी का मिलेगा, ठीक है. तो इंट्रो का बढ़िया मार्क्स इनको मिलता. देन लेट अस सी व्हाट आर द चैलेंजेस जिसकी ये बात करती है, राइट. सो सीधे इन्होंने यहाँ पे लिख दिया दैट देयर हैव बीन वेरियस चैलेंजेस emerged in European due to the changing, again see, geopolitical and geo-economic realities. They are 1, 2, 3. अब वही सारी challenges इन्होंने लिखे थे जो मैंने कॉपी नहीं करे, कि भाई geopolitical fault lines in European Union, division between the developed and the developing world, right, immigration issues, वही सारी चीज़ें, ठीक है, economic crisis in Greece, वगैरह वगैरह, वही सब जो हम लोग पढ़ते हैं, देख रहे हो. तो इनके आंसर्स में देखो अभी तक आपने हार्डली, हमने इनके आंसर्स में 50 वर्ड्स भी नहीं पढ़े होंगे. कितने, 1 2 3 4 5 6 7, लेट से 3-4 लाइन है, 35 वर्ड्स और लिखे 40 वर्ड्स. बट सी की वर्ड्स, सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन, फंक्शनलिज्म, इंस्टीट्यूशनलिज्म, लिबरल स्कूल ऑफ IR, जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल रियलिटीज, देख रहे हो, सिर्फ कोर पॉइंट ही लिख रही हैं, राइट. दिस इज द आर्ट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. ये कोई एनालाइज ही नहीं करता, पढ़ते जा रहे, दे आर स्टडिंग एवरीथिंग बट दे आर नॉट analyzing this, right. another example देखो, let's see, global terrorism and state system, ठीक है भाई. देखो मैं इस कोर्स में यही करने वाला हूँ, so if anyone is not interested in, तो फिर he or she can leave. if someone is asking कि सर कोई नया कंटेंट दे दो भाई, तो in today's world कंटेंट क्रिएशन से ज़्यादा कंटेंट क्यूरेशन की ज़रूरत है, याद रखना, ठीक है. मेरे पास कम से कम PSIR ऑप्शनल के कम से कम 5000 आंसर है टॉपर के, 5000, ठीक है. इफ़ यू डोंट बिलीव आई शो यू, ठीक है. इतना मटेरियल है मेरे पास PSIR ऑप्शनल के कंटेंट का ऑन टॉपर्स कॉपी, ठीक है. हर टाइप के आंसर है मेरे पास, घटिया वाले भी हैं, अच्छे वाले भी हैं, बहुत अच्छे आंसर्स भी हैं. ये बहुत अच्छा आंसर है, इससे अच्छा आंसर मैंने अभी तक कोई नहीं पढ़ा है, ठीक है. चलो पढ़ते हैं. ग्लोबल टेररिज्म एंड स्टेट सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म एंड स्टेट सिस्टम. तो देखो इस पे आपको कमेंट करना है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन स्टेट, ठीक है. तो सी, in post-Soviet era, the nature of security threats have been changed from, again, state-centric traditional to non-state-led non-traditional threats, or also called as unconventional threats. See, इन्होंने लिखा है, right. अब then quickly जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, फट से एग्जाम्पल देना जरूरी है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट that you need to support whatever you are saying. तो छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया. The global terrorism spread by transnational networks like Al-Qaeda, right, ISIS, etc. जो हम पढ़ते हैं, have questioned the ability of the states to protect the citizens in their territory, right. This has led to what? अब then इसका impact बता रहे हैं, क्योंकि ultimately क्या है, global terrorism and state system, you have to tell the impact on the state system, right. So see what the next is she has written, right. नेक्स्ट उन्होंने आंसर कराया दैट दिस लीड्स टू लेजिटिमेशन क्राइसिस in the weak states like Syria, Yemen, Afghanistan, and has led to creation of chaos in, you can say, Afghanistan. बेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने बता दिया. तो कैसे यहाँ पे स्टेट की सॉवरेनिटी का लॉस हो रहा है वो बताया है. बट सी इंट्रोडक्शन का स्टाइल देखा, शी डिड नॉट डिफाइन ग्लोबल टेररिज्म, राइट, क्योंकि इम्पैक्ट पूछा है ग्लोबल टेररिज्म एंड स्टेट सिस्टम. तो उन्होंने सीधा बताया क्या, ओरिजिन ऑफ द ग्लोबल टेररिज्म, क्योंकि वन ऑफ द negative impact of globalization is the globalization of not only ideas, globalization of material, but also the globalization of terrorism. ठीक है, कि globalization की वजह से terrorism बहुत ज़्यादा फैला है, the rise of non-state actors, right. So यहाँ उन्होंने एक theory which is also called as globalization की theory उससे linked किया है. तो एक और अच्छा introduction हो सकता था in the nature of the, you can say, in the era of liberalization, privatization, globalization, ठीक है, या in the era of globalization marked by liberalization and you can say privatization, ठीक है, there has been a changing nature of security from state-centric traditional ones to non-state like non-traditional ones, right. आज आप देखो what are the threats emerging, cyber crimes, ठीक है, new weapons of warfare, right. कोरोना वायरस कहा जा रहा है कि वो भी एक टाइप का what, it was a weapon of warfare, right. So the new biological terrorism, right, and you will be seeing cyber crimes, right. तो ये सब हो रहा है, ठीक है, which challenge the security or you can say the sovereignty of the state at multiple fronts,
तो स्टेट सिस्टम मतलब क्या है? स्टेट सिस्टम मतलब वो वेस्टफेलिनिया वाला, ठीक है। तो यहाँ पे और अच्छा लिखा जा सकता था, दिस हैज चैलेंज्ड द वेस्टफेलिनियन वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, मार्क्ड बाय स्टेटिस्ट, मार्क्ड बाय स्टेट सेंट्रिक पॉलिसीज, ठीक है। इसको यहाँ पे सीधा वो चैलेंज कर रहा है, ठीक है। एंड देन गिव द एग्जांपल। तो देख लो इंट्रो पहले से ही सोच के वो गई थी, ठीक है। कुछ भी ग्लोबल टेररिज्म वगैरह पे आएगा मैं यही एग्जांपल लिखूंगी, राइट, ठीक है। देन कम्स अनदर थिंग कि हमेशा ऑलवेज कम्स इंट्रो, तो मैंने आपको बताया। देन सी हाउ टू राइट अ बैलेंस कंक्लूजन, राइट। बैलेंस कंक्लूजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू डू नॉट नीड टू टेक साइड्स, राइट। ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा फ्रॉम वेरियस टॉपर्स दैट राइट बैलेंस, राइट। सो सी यहाँ पे कैसे जो बैलेंस कंक्लूजन है वो चीज़ लिखी है, राइट। तो कंक्लूजन को हम सीधा पढ़ेंगे। क्वेश्चन वॉज चैलेंजेस बिफोर द इंडियन नेशनल डिप्लोमेसी, ठीक है, दिस वॉज द क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर इन्होंने करा है, ठीक है। एंड सी इन्होंने पहले क्रिटिसाइज किया, चैलेंज बताया, ठीक है, कि बहुत सारा चैलेंज है, राइट। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, राइट। तीस्ता वाटर शेयरिंग का एग्जाम्पल दिया। देन शी टॉक्ड अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के चैलेंजेस है। देन कोएलिशन पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल कंसर्न, फेडरलिज्म वाला पार्ट, राइट, एवरीथिंग शी एड्रेस, राइट। बट देन व्हाट हैपेंस इज दैट कंक्लूजन आप देखो यहाँ पे क्या कंक्लूजन लिखा। कंक्लूजन शी एंडेड इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, ठीक है। यहाँ से पढ़ो। इन अदर, शुरू में तो क्रिटिसाइज किया, सी इन द अदर वे अराउंड देयर इज अ राइजिंग ट्रेंड टू गो अहेड फॉर क्रॉस बॉर्डर एंगेजमेंट बाय द स्टेट्स इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एन एग्जाम्पल आप दे भी सकते हो, ठीक है, चेन्नई, व्लादिवोस्टॉक, ठीक है, वुहान एंड जो गुजरात का कौन सा वो शहर है, राइट, ठीक है, उनके बीच में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप का कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी गेव एन एग्जाम्पल, केरला एक्सपोर्टिंग कैश्यू टू केन्या, ठीक है। दस देयर इज अ नीड टू चार्ट आउट the policy framework by consensus in this area for the autonomy of federal units and overall growth of the country. See, balanced state. एक तरफ she is also talking about we also need to maintain the autonomy of the federal units, कि कहीं आप इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम पे सेंटर स्टेट रिलेशन को तो वायलेट नहीं कर रहे, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू लुक बियॉन्ड द नैरो, यू कैन से, लेंस ऑफ रीजनलिज्म, एंड वी नीड टू लुक फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके का हमें पॉलिसी फ्रेमवर्क निकालना है, एंड वो पॉलिसी फ्रेमवर्क शुड हैव बीन इवॉल्व बाय कंसेंसस। बस देखा कितना अच्छा सा इंट्रो है, वन ऑफ द वेरी वेरी गुड इंट्रो। एनी डे कोई भी टाइप का एग्जामिनर होता, उसका कितना भी वो अपनी बीवी से लड़के आया होता, ठीक है, डेफिनेटली इस पर मार्क्स देता हो, डेफिनेटली इस पर मार्क्स देता, ठीक है। तो ये चीज़ है, टू द पॉइंट एंड सी शॉर्ट वर्ड्स। देखो इसको कहते हैं कम वर्ड्स में बहुत कुछ कह देना, ठीक है। पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में बता दिया, ऑटोनॉमी ऑफ फेडरल स्टेट्स के बारे में बता दिया, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री में बता दिया। 3 पॉइंट, बस खेल खत्म, राइट। तभी तो 320 नंबर है, ऐसा तो ना आ रहा है 320, समझो। ये कोई लिखता नहीं। सी अगेन इफ यू सी द वर्ड्स, थी पेपर 1A का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अगेन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। इफ यू सी आगे और लिखो सब नेशनल डिप्लोमेसी, इसका और अच्छा वर्ड क्या हो सकता है? एनीवन ये सुना है? पैरा डिप्लोमेसी, तो पैरा डिप्लोमेसी के बारे में बात किया जा सकता है, राइट, यहाँ पे, ठीक है, राइज ऑफ पैरा डिप्लोमेसी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से क्या है बताया जा सकता है। इलेक्टोरल कंसर्न्स, कोलिशन पॉलिटिक्स, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स इन द यूनियन लिस्ट, राइट। तीस्ता वाटर शेयरिंग का एग्जाम्पल आपने दे दिया, ठीक है। फॉलो द पॉलिसी ऑफ श्रीलंका की पॉलिसी इन्फ्लुएंस बाय तमिलनाडु पॉलिटिक्स, ठीक है, द्रविडियन पॉलिटिक्स, ये बताया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कितना अच्छा फ्लो में आंसर्स को लिखा है। इसको आई विल बी शेयरिंग विद यू, उस आंसर को पढ़ना, आपको रियलाइज हो जाएगा व्हाट एग्जैक्टली इज द फ्लो, राइट, ठीक है। देन सी एक और चीज़ होती है दैट वाइल आंसर राइटिंग एन आंसर यू शुड फोकसिंग ऑन स्कॉलर वर्सेस स्कॉलर काउंटर। अगर मैं एक BC स्कॉलर से इफ आई एम सेइंग दिस देन आई नीड टू काउंटर दिस बाय XYZ स्कॉलर। जैसे यहाँ पे देखो, इट इज़ अबाउट, यहाँ पे देखो, ये पढ़ो, ठीक है। According to Rani D. Mullen, right, she writes on South Asia, right, India lags in commitment of grant aid which harm its goodwill. Definitely, India के पास commitment नहीं है, India does not have so much resource, right. However, Rajiv Bhatia, देख रहे हो ये however word is important, underlines the projection of soft power by India in capacity building development assistance, right,
technology transfer, cultural cooperation, which overcome the Chinese real politic strategies in Africa diplomatic circles. Right, so ये basically था. Question was that India China challenge, India China competition in Africa. तो उसमें उन्होंने बताया था, उसमें that China is able to spend a lot of money, right? China का investment is 10 times of India's investment, right? So Rani Mullen says that India lacks in commitment of grants, economics नहीं है. However, Rajiv Bhatia says that we should utilize our soft power, which India is good at, that is capacity building, I-Tech program, development assistance, technology transfer, cultural cooperation. This will overcome the Chinese real politic. अब रियल पॉलिटिक कहाँ पढ़ते हैं हम? मैकेवेली में, राइट? रियल पॉलिटिक क्लासिकल रियलिज्म में पढ़ते हैं. चाइनीज रियल पॉलिटिक स्ट्रैटेजीज इन अफ्रीका डिप्लोमेटिक सर्कल्स. ठीक है, तो सी अगेन या चाइनीज रियलिज्म या चाइनीज यू कैन से जो वो है डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी, राइट? इससे काउंटर हम कैसे कर सकते हैं ये? तो बेसिकली देख रहे हो, एक स्कॉलर यहाँ पे काउंट नेगेटिव तो एक स्कॉलर तुरंत पॉजिटिव, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एज स्कॉलर वर्सेस स्कॉलर क्रिटिक. और ये इनके आंसर्स में आपको बहुत बार दिखेगा. When she is writing one scholar, she is using another scholar to counter another scholar, right? Then another thing, common thing जो आपको दिखेगी इनके answers में, that she sets the theories in chronological order to write an answer. ठीक है, मतलब simple, ancient, GS का example ले रहा हूँ, medieval, ठीक है, modern and contemporary में चाहो तो post modern लिख दो, simple. तो लेट अस से इफ आई गिव यू एन एसे ऑन वुमेन, तो उसमें हम नहीं कहते टेम्पोरल डायमेंशन, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, राइट, सेक्टोरल डायमेंशन. बस यही चीज़ में थियोरेटिकल डायमेंशन. जैसे हमारी पहली थ्योरीज क्या आई थी? पहले हमने देखा था फ्रॉम रियलिज्म टू लिबरलिज्म टू फेमिनिज्म, राइट, टू आपका वो एनार्किकल स्कूल, एनार्किकल सोसाइटी वाला, राइट, टू यू कैन से देन इन सबको काउंटर करता है मार्क्सिज्म, राइट, स्कूल्स की कमी थोड़ी ना हमारे पास. देन कम्स सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, देन कम पोस्ट मॉडर्निज्म. तो इस टाइप से क्या है आप यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, अब देखो इनका आंसर्स पढ़ते हैं. सो दिस वाज अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्टेट वगैरह पे क्वेश्चन था. क्या क्वेश्चन कुछ भी हो, हमें आंसर पढ़ना है. ठीक है, सी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस रिवॉल्व्स अराउंड द इंटर स्टेट रिलेशंस बाय कंसिडरिंग स्टेट्स एज द मेन एक्टर. स्टेट्स एज द मेन एक्टर के बारे में यहाँ पे माना जाता है, राइट. सो दिस शी स्टार्ट्स ऑफ विद द रियलिस्ट स्कूल, राइट. अब देखो द फिनोमेना ऑफ नेशन स्टेट वॉज एम्ब्रेस्ड बाय द डोमिनेंट डिस्कोर्सेज ऑफ रियलिस्ट एंड लिबरल ट्रेडिशंस. इसके बारे में यहाँ पे बात करती है, राइट. ठीक है, एंड दे टॉक अबाउट द रियलिस्ट टॉक अबाउट द व्हाट आर द प्रिस्क्रिप्शंस टू अवॉइड ट्रांस बॉर्डर वॉर्स बाय बैलेंसिंग ऑफ पावर. तो ये उन्होंने देखो रियलिस्ट स्कूल के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया कि रियलिस्ट स्कूल कैसे कैसे बताता है, एंड सजेशन वो बैलेंस ऑफ पावर के बारे में बात करता है. हाउएवर सी तुरंत रियलिस्ट के बाद क्या आया था? लिबरल एम्फसाइज ऑन बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन बाय द स्टेट्स. और एग्जाम्पल और दे दो, एग्जाम्पल यूएनओ, बस खत्म. एग्जाम्पल डाल दोगे तो और मजा आ जाएगा. ठीक है, इनके आंसर्स में थोड़ा सा एग्जाम्पल की मुझे कमी लगी, बट स्टिल एनी डे वेरी गुड आंसर. ठीक है, देखो तो रियलिस्ट से स्टार्ट करा, बताया कि रियलिस्ट एंड लिबरलिस्ट दोनों इसमें बिलीव करते हैं, राइट. रियलिस्ट हाउएवर टॉक अबाउट बैलेंस ऑफ पावर, राइट. ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी वगैरह इन पे ज़्यादा फोकस है, राइट. लिबरल्स दे टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग वगैरह, राइट. हाउएवर सी अगेन नेक्स्ट थ्योरी से काउंटर. मार्क्सिस्ट थ्योरीज गिव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स which transcend beyond the borders, which Marxist को एक पल में इन्होंने बता दिया कि they don't believe in these boundaries, right. अब Marxist में भी डिफरेंट है. शुरू में ऑर्थोडॉक्स और क्लासिकल मार्क्सिस्ट. सो दे बिलीव इन द क्लास इंस्टीट्यूशन, राइट. क्लास दे स्ट्रेस अपॉन द क्लास इन इंटरनेशनल सेटअप, याद है. एंड कार्ल मार्क्स कहता है कि देखो जस्ट एग्जाम्पल भी दिया है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेन्स, राइट. सो दे बिलीव दैट देयर शुड बी इंटरनेशनल प्रोलिटेरियनिज्म. तो इसका यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल बता दिया. ठीक है, तो दे डोंट बिलीव इन बॉर्डर्स अक्रॉस द स्टेट, दे बिलीव इन क्लासेस. तो क्लास इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस मार्क्सिस्ट ऑर्थोडॉक्सी देता है. लेनिन भी इसी चीज़ को स्ट्रेस करता है. ही असर्ट्स दैट इंपीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म एंड ही सजेस्ट कम्युनिस्ट टू बी द वैनगार्ड ऑफ द रेवोल्यूशन, राइट. इस टाइप की बात करते हैं. ठीक है, सो कंक्लूजन देखो, traditional Marxists do not give nation state as important, rather say that such ideologies are false consciousness and states are the instrument of capitalist class. तो मार्क्सिस्ट से भी यहाँ पे रिकग्नाइज करवा दिया, अच्छे से इनकी धुलाई कर दी. डज इट एंड? नहीं, अभी आगे. लेटर मार्क्सिस्ट फोकस ऑन रियलाइजिंग अमंग द रिलेशंस अमंग द स्टेट्स थ्रू द लेंस ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. अब देखो वही वाली चोरी, कौन सी? डिपेंडेंसी स्कूल. देख रहे हो, तो डिपेंडेंसी स्कूल, इंस्ट्रूमेंटल स्कूल,
यहीं पे आपने इमैनुअल वॉलस्टीन का नाम लिख दिया, मजा आ जाएगा, राइट। सी डिपेंडेंसी स्कूल गिवन बाय A.G. फ्रैंक वगैरह, इमैनुअल वॉलस्टीन वगैरह, राइट। तो ये लोग क्या बात करते हैं, दीज टॉक अबाउट क्या, द वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज एंड हाउ दे आर अ सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, डिपेंडेंसी, इनके बारे में बताते हैं, राइट। दे आर डंपिंग द फिनिश्ड goods in territorial markets of the developing countries. This is called as neo-colonialism. Poverty of the prosperity of the West directly related to poverty of the East. ये सारे वर्ड्स आपने यहाँ पे लिख दिए, राइट। क्या यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है, नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्कूल नियो ग्राम्शियन लाइक रॉबर्ट कॉक्स वगैरह, दे टॉक अबाउट हेजिमनी इन IR. हेजिमनी इन IR के बारे में बात है, दे टॉक अबाउट बिल्डिंग आइडियाज, राइट, मटीरियल कैपेबिलिटीज वगैरह से हटके आइडियाज वगैरह की बात करते हैं। देन वी टॉक अबाउट क्रिटिकल स्कूल, राइट, जिनका मानना है एंड ऑल दीज यू कैन से फिजिकल टेरिटोरियल बॉर्डर्स, लेट अस क्रिएट मॉरल बाउंड्रीज, ठीक है। सो दे टॉक अबाउट व्हाट, दे टॉक अबाउट यू कैन से यहाँ पे मॉरल वैल्यूज पे ज़्यादा करते हैं। दे टॉक अबाउट ग्रास रूट डेमोक्रेसी अक्रॉस द ग्लोब, राइट। तो देख रहे हो सारी थ्योरी जो हमने शुरू में पढ़ी थी उसी को इन्होंने अरेंज कर दिया, राइट, इन अ क्रोनोलॉजिकल वे, राइट। देख रहे हो, सो इजंट दिस गुड थिंग कि आपने स्टार्ट किया लिबरल से, आपने क्लासिकल से स्टार्ट किया, उनका सजेशन बताया, देन यू वेंट ऑन टू लिबरल, देयर सजेशन, देन यू वेंट ऑन टू मार्क्सिस्ट, देयर सजेशन, देन यू वेंट ऑन टू द न्यू मार्क्सिस्ट, द ग्रैम्शियन, एंड स्टार्ट एंडिंग, राइट। तो इस तरीके से जितना आपको लिखना है उस पर्सपेक्टिव पर आप लिखते जाइए, राइट। सो दैट इज़ हाउ एन आंसर शुड बी रिटन। स्पेशली थ्योरी वाले पार्ट का आंसर आपको ऐसे ही लिखना है, राइट। नाउ अगेन सी वर्ल्ड ऑर्डर एंड स्टेट्स ऑफ यूनिटी पे ये पूछा गया था, राइट। तो इन्होंने अगेन करंट वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। तो इधर भी इन्होंने शी हैज टॉक्ड अगेन थ्रू द थ्योरी, जैसे द लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म इज बीइंग रिट्रीटिंग ड्यू टू द बायस वर्किंग ऑफ द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। इसके बारे में इन्होंने बताया कि अब लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। एंड देयर इज अ राइज ऑफ द रेस्ट, एग्जाम्पल दिया, राइट। ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशन लाइक न्यू डेवलपमेंट बैंक, AIIB, ठीक है, ये सब क्रिएशन हो रहा है, right. So these are challenging the hegemony of the liberal world order, right. Then the globalization has been given blow to the state-centric policies, state-centric identities, and there is a rise of what, multiculturalism, environmentalism, ठीक है, ecologism, feminism, इनका rise हो रहा है। See again theories से theory आ रही है, right. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। See she is giving a lot of examples also, right. Examples also बता रही है कि कैसे आज वर्ल्ड ऑर्डर डिक्लाइन हो रहा है। देन इन्होंने एक बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ लिखी थी, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। हेंस द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर आर इन ट्रांजिशन विच डिविएट फ्रॉम द वेस्टफेलिनियन रियलिस्ट नोशन, राइट। और आज ऐसा कहा जा रहा है दैट द वर्ल्ड ऑर्डर विल नॉट बी वन कंट्री स्पेसिफिक, इट विल नॉट बी वन कंट्री स्पेसिफिक, बट इट विल बी टूवर्ड्स अ रीजन स्पेसिफिक। सो आज द वर्ल्ड ऑर्डर इज शिफ्टिंग मोर एंड मोर फ्रॉम यू कैन से पैसिफिक, ठीक है, टू एशिया, फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका टू एशिया, इंडो पैसिफिक पे वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। सी सिमिलरली शी गिव्स एन एग्जांपल ऑफ हेडली बुल हु सेज दैट एनार्किकल सोसाइटी होनी चाहिए, राइट। तो ये देखो अगेन उसी तरीके से थ्योरेटिकली शी इज राइटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लर्न करनी है, ठीक है। व्हेन यू आर एबल टू लर्न दिस देन आप यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका कंटेंट भी ऐसे याद होगा ना, सो यू कैन राइट वेरी वेरी गुड आंसर्स ऑन देयर, ठीक है। तो और भी एनालिसिस करेंगे, बट आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, राइट। सो एनी डाउट स्टिल हेयर, प्लीज़ आस्क। हाँ, यू कैन कॉपी सम पॉइंट्स, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ पूरा का पूरा चोरी कर लो, ठीक है। शी हैज़ रिटन वाई कांट यू राइट, बिल्कुल, ठीक है। इनफैक्ट व्हेन आई क्रिएट नोट्स, लेट मी शेयर विथ यू, आई स्टील अ लॉट फ्रॉम द टॉपर्स कॉपी, ठीक है भाई। जब कोई बंदे ने कर रखा है, वाई यू वॉन्ट टू वेस्ट, राइट, वाई। सी आई विल शो यू, जैसे यहाँ पे लेट मी जस्ट सी, ठीक है। मैंने ये देखो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का लिखा है मैंने, राइट। यस्टरडे ओनली आई वाज मेकिंग दीज नोट्स, सी। तो इनका बीच से मैंने ये कॉपी कर लिया। इंडियन PM डिड नॉट अटेंड द NAM समिट सेकेंड टाइम इन द हिस्ट्री, ठीक है। तो दिस अंडरलाइंस द रिडक्शन इन द रेलेवेंस ऑफ NAM इन द इंडियन डिप्लोमेटिक फ्रंट, ये लाइन कॉपी कर ली। देन सी S. जयशंकर सजेस्ट टू अडॉप्ट अ प्रूडेंट निम्बल फुटेड पॉलिसी to position among multiplicity of actors than to go for balancing, right. So we say that we should not go for balancing, rather we should adopt a very agile, nimble का मतलब होता है agile, very fast moving foreign policy, prudent foreign policy. So वही चीज़ को यहाँ पे ये स्ट्रेस कर रहे हैं, जैसे ऊपर ये वाली लाइन लिखी है, ठीक है, कि S. जयशंकर
in Vaisena Dialogue 2020 says that India is now a leading power and not a balancing power. Right? India is a shaper rather than abstainer. India is a rule maker rather than rule taker. Right? तो यही सारी चीज़ें. So that is how jargonism language वाली आपको लिखनी है in paper 2 भी. Right? Foreign Secretary Vijay Gokhale, what does he say? India has moved on from its non-aligned past. Today it is aligned. Today it is aligned on what? ठीक है, it is aligned on interest. It is based aligned on interest. Issue based alignment चल रहा है. राइट, तो ये चीज़ यहाँ पे रखनी है. ठीक है. सेंटर पिलर क्या है? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी. स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स मल्टीपल अलाइनमेंट्स. राइट, प्लेइंग एट मल्टीपल फ्रंट्स. तो ये एस्पेक्ट आपको यहाँ पे सीखना है. राइट, तो ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. डोंट वरी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी हम डिस्कस करेंगे मोदी एरा वगैरह में. ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा जितना आएगा. ठीक, इंट्रो मोदी फॉरेन पॉलिसी, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, सो आई कॉपीड दैट अकॉर्डिंग टू सी राजा मोहन द एरा ऑफ मोदी गवर्नमेंट मार्क्स द थर्ड रिपब्लिक प्रिसाइडेड बाय अ वीक कोलिशन एरा जो चला 1989 से 14 तक, एंड द सेंट्रल पॉलिसी ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक प्री 1989. राइट, तो अब the foreign policy then come, the foreign policy is also showing remarkable changes in this era, and start giving the examples, start giving the lot of examples. Right, similarly see cultural and Indian foreign policy पे था, इन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा था, तो ये भी मैंने आपसे कॉपी कर लिया. राइट, दैट हाउ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी शेप्ड बाय इट्स कल्चर. तो देखो वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रही है फ्रॉम हिंदू पॉलिटिकल थॉट्स, वैदिक टेक्स्ट. तो वर्ल्ड इज वन फैमिली. सो इंडियन फॉरेन पॉलिसी बिलीव्स इन वासुदेव कुटुंबकम. यहाँ एग्जाम्पल दे दो, एड देना, राइट, रेफ्यूजी को वो देना, तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हो. राइट, वी बिलीव इन द कॉमन गुड बियॉन्ड द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट. देन टॉक अबाउट पंचशील एंड बुद्धिज्म, कि हाउ द 5 प्रिंसिपल्स of Panchsheel have been adopted from Buddhism and Jainism texts like non-intervention, non-interference, mutual respect, peaceful coexistence, non-aggression. ये है winning the war through love rather than real politics. Talk about unity in diversity from the days of Ashoka, Akbar. Right, ये सारी चीज़ आप बता सकते हो. Right, transcending religious, cultural, religion, language, इनसे ऊपर उठना है. Talk about the Gandhian philosophy of non-violence. Right, talk about non-alignment from Buddhist middle path. तो non-alignment भी एक important feature हो गया. ठीक है, ये सारी चीज़ें. जैन टेक्स्ट के बारे में आप बताओ. राइट, टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, दैट वी लुक ह्यूमन्स फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव. राइट, सो वी टॉक अबाउट इक्वल मॉरल वर्थ, इक्वल ग्रोथ, इक्वालिटी ऑफ ऑल. तो एग्जाम्पल आप दे सकते हो. इंडिया फॉट फॉर द अपार्थाइड इन अफ्रीका, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एग्जाम्पल दे दिया. राइट, तो ये सब क्या है, देखो टॉपिक जोन की बात है. राइट, ठीक है. टॉक अबाउट इकोलॉजिकल डिविनिटी, हमारे यहाँ क्या होता है, पेड़ों की पूजा होती है, मदर अर्थ. That is why you see India is very very solid, and India has a whole to maintain solidarity on environmental negotiations. ठीक है, मोदी जी leading from the front. ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो वाला कौन सा, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, वन दिस, वन दैट, वो एग्जाम्पल डाल दो. ठीक है, सो ये क्या है, ऑल दिस इज फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल एंशेंट हिंदू टेक्स्ट. ठीक है, वेयर वी गिव अ लॉट ऑफ, यू कैन से रिस्पेक्ट एंड अ लॉट ऑफ, यू कैन से इम्पोर्टेंस टू मदर नेचर. राइट, तो इसीलिए. एंड देन कंक्लूड, ड्यू टू सच इगैलिटेरियन एंड होलिस्टिक प्रिंसिपल, सी पॉजिटिव नोट पे, ड्यू टू सच इगैलिटेरियन एंड होलिस्टिक प्रिंसिपल, इंडिया हैज ऑलवेज बीन एन आर्डेंट चैंपियन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड रूल बेस्ड ऑर्डर. खत्म. कि अब ऊपर एनालिसिस करा है सर, तो इसीलिए ये चीज़ हो रही है. खत्म, मूव ऑन. देख रहे हो कितना शॉर्ट टू द पॉइंट लिख रहे हैं. नो बीटिंग अबाउट द बुश. एब्सोल्युटली एक भी स्टेटमेंट आपको इसमें लग रहा है कि यार फर्जी लिखा है इसमें, नहीं ना. अब बताओ, हु विल नॉट गिव हर मार्क्स? कौन नंबर नहीं देगा, एक बात बताओ. देख लो, ऐसे ही है. इफ़ यू रीड दिस टॉपर्स कॉपी यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं, इसके अंदर आपको दिखाई देगा बहुत सारा, आपको इसमें कंटेंट दिखाई देगा एंड होगा. ठीक है. नाउ समवन इज आस्किंग व्हाट सर थ्योरीज को स्ट्रॉन्ग कैसे करें और ऐसा कैसे प्रेजेंट करें, बताओ सर. प्रैक्टिस, यही क्वेश्चन. पहले आप, फिर प्रैक्टिस, आप पढ़ो बार बार. ठीक है, अब इसका भी आंसर देते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज सर इन्होंने ऐसा कैसे करा. राइट, मैं भी आई वाज शॉक कि यार जब इन्होंने भाई इतना गंदा आंसर कैसे लिखा है. ठीक है, सो आई सर्च एंड थोड़ा बहुत देखा मैंने इनका ना, एंड मुझे इनके नोट्स लग गए हाथ. ठीक है, एंड इनके शॉर्ट नोट्स मुझे हाथ लगे, एंड आई वॉज अमेज्ड. I was amazed at the fact that she had made short notes in a same manner.
इन्होंने अपने जो नोट्स भी बनाए थे ना, ठीक है, वो भी इन्होंने शी हैड मेड इट इन द सेम मैनर, राइट, एंड आई विल जस्ट शो यू, राइट, आई विल जस्ट शो यू, जस्ट अ सेकेंड, राइट, जस्ट अ सेकेंड, देखो, ठीक है, नाउ सी आई विल शो यू द टॉपर ट्रिप्टी नोट्स. नाउ लेट अस सी ब्रिक्स के नोट्स देखते हैं इनके, ठीक है, ऐसे इनके बहुत सारे नोट्स हैं, राइट. नाउ इफ़ यू सी इनके ये नोट्स कैसे बनाए इन्होंने, राइट, इफ़ यू सी ब्रिक्स वाला पोर्शन जो है, सी टू द पॉइंट, एक्रोनियम कॉइन्ड बाय जिम ओ नील, राइट, ठीक है, फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस एट येकटेरिनबर्ग रशिया वाला समिट 2009 में आया है, ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने बात करी, राइट. देन उसके बाद इन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे डेटा लिख दिया, 40% ग्लोबल पॉपुलेशन, 20% ग्लोबल जीडीपी, ठीक है, एंड देन उसके बाद थोड़ा नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स वाली कंट्रीज है. देन सी सीधा शी अटैक्स विद द कोट फरीद जकारिया, एन एडवेंट ऑफ पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन टॉक्स अबाउट डिक्लाइन ऑफ वेस्ट एंड द राइज ऑफ वेस्ट, राइट, इस टाइप की इन्होंने यहाँ बात करी. देन मूव ऑन एंड सी शशि थरूर क्या कहते हैं, एक्सक्लूजन फ्रॉम द प्लेस where they should have been in current world order forced these countries to come together, right, इस टाइप से बात करते हैं. जिम ओनील कहते हैं what, that in 2000 by 2030 by 2050 these BRICS countries will surpass the combined GDP of G7, ये बात करते हैं, right. Then move ahead and see BRICS gain relevance in context of what, American first policy, challenges of European Union, sharpening of the divide between G7 कंट्रीज, राइट. देन उन्होंने थोड़ा बहुत रीसेंट समिट के बारे में बताया, राइट, एंड उसमें भी क्या क्या स्ट्रेस ऑन मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, राइट, ठीक है, इस टाइप की बात कर रहे हो, ठीक है. द ब्रिक इज मेकिंग इट सेल्फ रेलिवेंट, द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, सी इस टाइप की बात करते हैं. सी अगेन देन सी राजीव भाटिया का क्या कहना है ये बताया है, ठीक है. कोर एरियाज मेंशन्ड इन आर रूल्स बेस्ड इंक्लूसिव ट्रेड ऑर्डर, कॉपरेशन इन 4th IR, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, इस टाइप की बात, जॉइंट एफर्ट अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म, ये सब वही पॉइंट्स हैं, ठीक है. एक अभी देखना श्याम सरन का व्यू है, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, कहाँ गया श्याम सरन का व्यू, ये रहा, सी श्याम सरन व्यू. ब्रिक्स कैन बी अंडरस्टूड थ्रू 3 I's, आइडियोलॉजीज, इंस्टीट्यूशंस एंड इशूज, राइट. आइडियोलॉजीज डज नॉट मैटर फॉर इंडिया नाउ, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी चेंज हो चुकी है, राइट, बट वॉट मैटर्स इज द इशूज, राइट, ठीक है, द इशू विच इज डू मैटर फॉर इंडिया, राइट, फॉर रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, राइट. तो इस तरीके की बात चलती है, एंड दैट इज वाई दे आर बिल्डिंग न्यू इंस्टीट्यूशंस, राइट. आपका ब्रिक्स बैंक बन रहा है, इस टाइप से आपका कंटेंजेंसी रिजर्व बन रहा है, राइट. तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करो, ठीक है. तो इस टाइप से अगर आप लिखोगे तो बहुत ही अच्छा आंसर आएगा, राइट. सी राजा मोहन, रेलिवेंस ऑफ फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है रेलिवेंस, तो सी राजा मोहन सेज that though BRICS suffered from internal yet the new external environment compel this country to cooperate, ठीक है. अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका रिट्रीटिंग अवे, राइट, तो दे आर कमिंग टुगेदर, राइट, एंड द ओल्ड ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस में क्राइसिस चल रहा है, राइट. सो व्हाट इज हैपनिंग, दे आर कमिंग टुगेदर, राइट. सो it was supposed to be an anti-West platform. However, for India, BRICS is less about ideological posturing, more about repositioning in the challenge in changing the great power equation. So it is through BRICS India can challenge the great power equations, right. So BRICS is the next new big thing, ठीक है. तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और कुछ करंट वगैरह आए तो इन्होंने नोट्स ही ऐसे बना रखे हैं यार, ठीक है. अब सी चैलेंजेस बिफोर द ब्रिक्स, तो इन्होंने सारा ये लिखा है, ठीक है. देखो, दो ब्रिक्स हैज एक्सपैंडेड इट्स आर्क ऑफ इंटरेस्ट, established new partnership, developing the habit of cooperation वगैरह, yet remains far from achieving its goals. तो देखो पहले से लिख के रखा है, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस, फट इन्होंने यहाँ पे सारे के सारे चैलेंजेस को बता दिया, राइट. तो सारा चैलेंजेस यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ बता दिया, राइट, ठीक है. तो ये चीज़ अपने को यहाँ से सीखनी है. तो इन्होंने जो भी नोट्स बनाया था ना, जितना भी नोट्स बनाया था, राइट, आई हैड सीन, ये देखो इनके पेपर 1A के नोट्स, राइट, अगर आपको दिख रहे होंगे, राइट, ठीक है. तो ये आप देखोगे लगभग इनके 183 कुछ पेजेस के नोट्स हैं 1A के. तो इन्होंने सारे नोट्स ऐसे बनाए थे, एक सेकंड, ये क्या हो गया यार, ठीक है, हाँ देखो, तो ये देखो, सो शी हैड क्रिएटेड ऑल द नोट्स लाइक दिस. तो देखो डिफरेंट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, देखो ऑलरेडी सेट कर रखा है, लिबरल व्यू, मार्क्सिस्ट व्यू, कम्युनिटेरियन व्यू. तो मैं ऐसे ही लिखने वाली हूँ क्वेश्चन में भी, राइट. तो जब आप ऐसे पढ़ोगे तो क्या होगा, देख रहे हो, कीवर्ड्स में नोट्स हैं, कीवर्ड्स में नोट्स,
ठीक है, सिस्टम एनालिसिस में देखो, राइट, देखो कीवर्ड्स में इन्होंने नोट्स बना रखे हैं। इंट्रो पहले से सेट है सिस्टम एनालिसिस का कि इट इज़ द पायनियरिंग मॉडल ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है, एंड बुक का नाम भी लिख रखा है, एन अप्रोच टू एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1957, फर्स्ट डेवलप बाय डेविड ईस्टन, राइट, इस टाइप की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो की पॉइंट्स में जब आप लिख के रेडी रखोगे अपने नोट्स को में, तो ऑन दैट डे and if you have revised it multiple times, you will be able to replicate a lot of those, you will be able to easily replicate a lot of those। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, सी क्रिटिसिज्म इस तरीके का कर रखा है, और उसके बाद कभी वैल्यू न्यूट्रल वगैरह और ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आपको इनके ना हर एक टॉपिक का, कोई भी अगर आप टॉपिक उठा के देखोगे, सी JS मिल का इन्होंने 1 पेज में पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज़ यहाँ पे लिख दी, राइट। सिमिलरली 2A 2B किसी में भी ये चीज़ लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, राइट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली देखो मैं इनके इंडिया अफगानिस्तान के नोट्स देख रहा था, राइट, तो सी इंडिया अफगानिस्तान का सीधे इन्होंने क्वेश्चन ही मॉडल आंसर लिखा है। इन कंटेक्स्ट ऑफ करंट चैलेंजेस इन अफगानिस्तान, चार्ट आउट द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर इंडिया। तो देखो पहले से ये सोच के बैठे कि जैसे कुछ भी होगा मैं तो यही लिखूंगी हर्ष पंत का। अकॉर्डिंग टू हर्ष वी पंत, India has a major strategic interest in Afghanistan. India has friendly, warm relations, deep cultural connections with the people of Afghanistan since the time of ancient time से ये चीज़ है, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान वगैरह सब यहाँ पे बता के रखा है, राइट। तो ये चीज़ यार आई फील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन्हीं के ही वो करोगे ना, अ कोर्स ऑफ एक्शन भी खुद नहीं लिखना, स्कॉलर्स हर्ष वी पंत ने क्या बोला है, ठीक है सर वही लिखेंगे, सी राजा मोहन ने क्या बोला है वही लिखेंगे, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनका अफगानिस्तान वाला कंक्लूजन, just read it, you will find a lot of you will find कि हाँ यार she really wrote it very nicely। See what does she write? New Delhi has so far shown an unusual tenacity while dealing with Afghanistan, right? It now needs more to go more beyond the binary of economic cooperation, military engagement, and evolve a comprehensive policy involving all dimensions of power, right? Afghanistan is a tough country. Only those who fight on multiple fronts can take the leverage ahead. So India should learn the art of fighting at multiple fronts। तो कंक्लूजन में एक टाइप का सजेशन दिया है, इट्स नॉट अ मोर ऑफ कंक्लूजन, सजेशन दे रही है। सो एक गुड ब्यूरोक्रेट क्या होता है, ही ऑलवेज गिव्स अ गुड सजेशन कि आप एक सर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाओ टुवर्ड्स अफगानिस्तान, फाइट एट मल्टीपल फ्रंट्स, राइट, इस तरीके से करना है। एंड यही चीज़ यू सी नाउ इंडिया रियलाइज दिस मिस्टेक, सो नाउ इंडिया इज लुकिंग टू टॉक टू अफगानिस्तान एंड कहीं ना कहीं नॉन ऑफिशियली बातचीत चल रही है, राइट। तो अब धीमे धीमे वो चीज़ हो रही है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके नोट्स ऐसे रेडी हैं, राइट, सो वाइल राइटिंग एन आंसर यू विल नॉट बी स्ट्रगलिंग अ लॉट, राइट। बट इफ़ योर नोट्स आर नॉट रेडी, इफ़ यू हैवंट रेड अ टॉपर्स कॉफी, तृप्ति धौमेशी दे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 18 रैंक थी उनकी एंड 320 मार्क्स थे, 18 या 16 रैंक थी, राइट। ऐसी बहुत सारे टॉपर्स किए, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू राइट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से आई फील कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया, राइट, टॉपर्स की कॉपी का, एंड व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम द टॉपर्स कॉपी, राइट। तो ये दिस इज डन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, किसी का भी इससे पहले कोई डाउट है? इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, एल्स वी विल डिस्कस द लास्ट पॉइंट, दैट इज नोट्स कैसे बनाने। किसी का भी कोई डाउट? Any doubts you can ask. ठीक है सर, रिगार्डिंग नोट्स इटसेल्फ सर, आई हैव नॉट मेड नोट्स ऑन 2B। खतरे की चीज़ है तुम, ठीक है, यू आर प्लेइंग विथ फायर इफ़ यू हैव नॉट मेड नोट्स, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, बना लो, अभी वक्त है, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। देखो सी करना तुमको ही है, अब ये सोचो सब बने बनाए कुछ दे दो ऐसे अगेन, ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं आकांक्षा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन,
ऑन ORF एंड न्यूज़पेपर, राइट. अभी हम बात करेंगे, ठीक है, राइट. चलो देन लेट्स मूव ऑन टू द नोट्स वाला पार्ट, एंड नोट्स कैसे करने हैं, ये लोग कहाँ से ये लोग सीखते हैं, राइट. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं. जस्ट अ सेकेंड, वेट सेकेंड. देखो सी ब्रिक्स का कंक्लूजन तो देखो कितना अच्छा लिखा है, ठीक है. फ्यूचर, राइट. ब्रिक्स कैन emerge as a voice of moderation, stability and balance against the age of capricious unilateralism. देख रहे हो, द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. एल्केमिस्ट पढ़ी है किसी ने, ठीक है, उसमें क्या है, लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. सिमिलरली इसे कहते हैं द लैंग्वेज ऑफ IR, ठीक है. ब्रिक्स कैन emerge as a voice of moderation, stability and balance against the age of capricious unilateralism. इतना भारी भरकम चीज़ है, बट दैट इज हाउ यू नीड टू राइट. कैप्रेशियस मीन्स व्हाट, इट मीन्स वेरी वेरी अनस्टेबल. अनस्टेबल यूनिलेटरलिज्म चल रहा है, तो उस पर व्हाट कैन वी डू, ब्रिक्स कैन एक्ट एज अ वॉइस ऑफ मॉडरेशन, राइट, इन अ वेरी वेरी ट्यूमल्चस वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है. तो ये सारी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है IR की, ठीक है, तो यू नीड टू रीड गुड सोर्सेस. गुड सोर्सेस से आपको पढ़ना है, राइट. एंड ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द लास्ट सेक्शन ऑफ द डिस्कशन, दैट इज नोट्स कैसे बनाने हैं. तो सबसे पहली बार नोट्स कहाँ से बनाने हैं, ठीक है, एज आकांक्षा आस्क्ड, राइट. सो द बेस्ट पार्ट टू दिस नोट्स मेकिंग, राइट, ठीक है, जैसे मैं भी बताऊंगा कैसे भी बनाने हैं ऑनलाइन कैसे, इज थ्रू स्टैंडर्ड वेबसाइट्स. एंड स्टैंडर्ड वेबसाइट्स आई मीन ORF, राइट, आई मीन कूटनीति, ठीक है, एंड बेस्ट गूगल. जस्ट इफ यू गूगल दिस, राइट, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गुड आर्टिकल्स. कभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बहुत अच्छा आर्टिकल आ जाता है, राइट, बट वी डोंट नो. सो जस्ट रीड दैट इंटायर आर्टिकल इन अ वेरी क्विक मैनर. बहुत ही क्विकली पढ़ेंगे, ठीक है. बाकी क्लास में भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कल से, डोंट वरी अबाउट दैट, एक सेक्शन रखेंगे इस पर भी, ठीक है. बट ORF, कूटनीति, इन सारी चीज़ों से आपको यहाँ पे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट, बिकॉज सिंपल रीज़न, देयर इज़ नो एनालिसिस डन in, you can say, local type of you can say paper, right. And these ORF, these Kutniti, they are standard, you can say, research institutions, right, for the, you can say, foreign policy. So foreign policy के ये लोग standard research institutions है. And Observer Research Foundation की if you go to the website, you will see क्या है कैसे है, and बहुत ही अच्छी वेबसाइट है. So आज का आपको होमवर्क है, just browse the website of ORF, you will get to know, right. The next is notes कैसे बनाने. So I suggest in this section you should be making theme wise notes, topic wise notes in online format. ऑफलाइन में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. ऑनलाइन में क्या होता है ना, कुछ भी पढ़ रहे हैं, सपोज करो, चलो मैं सेंट्रल एशिया का बताता हूँ. अब ये सेंट्रल एशिया का देखो, ये मेरे नोट्स थे, राइट. तो व्हाट आई हैड डन वाज, मैं कुछ भी पढ़ता हूँ, सेंट्रल एशिया में लिख दिया है, ठीक है. टॉपिक और अच्छे से लिख दोगे तो मजा आ जाएगा. तो ये मैंने कभी सेकंड सेंट्रल एशिया का डायलॉग वगैरह आया था, मैंने आई वाज रीडिंग द विजन मैगजीन, तो जल्दी से मैंने ऊपर से अंडरलाइन कर लिया जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगा, एंड सेलेक्टिवली आई टुक दैट स्क्रीनशॉट, कॉपी पेस्ट मार दिया, राइट. सो सी, व्हेन एवर आई मेक नोट्स आई ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन कि साला क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो इट कुड बी इंडियाज इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया. तो क्या इंडिया इंटरेस्ट, मिनरल रिसोर्सेज आपको दिख रहा है, हाँ है ना, ठीक है. एग्जाम्पल में ये डाल दिया. नाउ आई जस्ट रीड द ब्लू पार्ट, मैं बीच में पढ़ूंगा भी नहीं, हटाओ, ठीक है. स्ट्रेंथनिंग इंडियाज रोल इन पीस नेगोशिएशन इन अफगानिस्तान, राइट. कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. इट इज़ अ गेटवे टू यूरोप, राइट. इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जस्ट अ सेकेंड, राइट, ठीक है. देन आप यहाँ पे एग्जाम्पल डाल सकते हो, ठीक है. इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है. इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, हाई कंज्यूमर मार्केट, ensuring regional peace and stability, right. And the best example is Taliban taking over Afghanistan, ठीक है. India's overseas projects such as Tapi pipeline etc. So they require the security, right, else it will be failure. Then comes issues में क्या क्या है, terrorism, radicalization, threat to the proliferation of weapons of mass destruction and all that thing हम यहाँ पे लिख देंगे. फिर वे फॉरवर्ड में मैंने लिख दिया था, ये देखो, आई हैड रिटन समथिंग काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड, कि वे फॉरवर्ड आएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई इंडिया शुड लेवरेज दैट हिस्टोरिकल कल्चरल सिविलाइजेशनल बॉन्ड्स, ठीक है. क्लोज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाओ, ठीक है. इंडिया शुड इफेक्टिवली यूज छाबार पोर्ट. एंड अब देखो, इन लास्ट वीक ओनली जयशंकर जी विजिटेड फॉर द CICA. आई डोंट नो अगर आप लोग करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो, तो CICA को विजिट किया था, ठीक है. कॉन्फ्रेंस ऑफ इंट्रैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया. एंड उसमें यही बात की गई कि ही टॉक्ड अबाउट लिंकिंग द छाबार पोर्ट टू द INSTC कॉरिडोर, राइट. तो आप एक यहाँ सजेशन दे सकते हो, ठीक है. तो
अब जब मैंने पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले तो सेंट्रल एशिया पे आर्टिकल आया, सो इसी में ही क्या करा मैंने, इसी अगेन आई रोट दिस इंडियाज एफर्ट क्या क्या है, थोड़ा बहुत डेटा फैक्ट्स वगैरह लिख दिया, इसी में ही इसी एक और आर्टिकल आया, ठीक है, PSIR का सेंट्रल एशिया कुछ आया था, तो मैंने देखो यहाँ लिखा है, सी एट CICA मीटिंग जयशंकर स्पोक ऑफ टेररिज्म एज अ मेजर चैलेंज इन फेसिंग द रीजन, राइट, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज नॉट अ स्टेट क्राफ्ट, इट इज सिंपली अनदर फॉर्म ऑफ टेररिज्म, तो पाकिस्तान को टारगेट किया गया, राइट। सिमिलरली while speaking on connectivity, Jaishankar took a dig at China का Belt and Road Initiative, right, he talked about transparency, financial viability and respect for sovereignty, तो यही सब जब आंसर लिखोगे तो लिख देना उसमें, हाँ है ना, ठीक है। अगेन मैं कुछ पढ़ रहा था तो सी आई रोट अबाउट हार्ट ऑफ यूरेशिया फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड, तो मैंने इन सब को ही क्या कर रखा है, ऑनलाइन में कहीं कुछ मिला, कोई भी माल मिला, आई छाप दिया इस टाइप का, राइट, तो मैं तो पूरे नोट्स में बना था, आई जस्ट कॉपी पेस्ट, सी स्क्रीनशॉट लिया मैंने, ठीक है। इंडिया देखो एक चैलेंज है, इंडिया हैज बीन अ लेट कमर, चाइना इज वे हेड ऑफ इंडिया, राइट, राइट, कनेक्टिविटी रिमेन्स अ वेरी वेरी मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर ट्रेड, अनस्टेबल अफगानिस्तान, तो ये सब चीज़ें लिखो। देन सी मैंने बहुत सारे ORF की वेबसाइट से ही कॉपी करा है मैंने, सो व्हाट आर द MOUs वगैरह जो साइंड हुए, तो रिसेंटली सी अब आएगा तो मैं ये लिख सकता हूँ पैरा डिप्लोमेसी में MOU बिटवीन गुजरात एंड एंडी जैन, ठीक है, लिख दो, एग्जाम्पल दे दो क्या जा रहा है, राइट, मिलिट्री मेडिसिन, ठीक है, मिलिट्री एजुकेशन में कॉपरेशन चल रहा है, 200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट टू उज्बेकिस्तान, ये दिया हुआ है, राइट, तो इस टाइप ये 2-3 एग्जाम्पल लिख दो, राइट, कॉपरेशन और मल्टी लैटरल फोरा इंक्लूडिंग UN SCO, ये सब चीज़ें लिख दी, राइट, ठीक है। देन और सजेशन कहीं दिखा था, कहीं और कुछ पढ़ा था, सेंट्रल एशिया कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, राइट, इट टॉक्स अबाउट अ मल्टी मॉडल अप्रोच टू स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड कल्चर टाइज बिटवीन टू, राइट, तो ये चीज़ आपने लिख दी। अब पूरा मत लिखो, थोड़ा बहुत देखो, इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके स्क्रीनशॉट मार दिया, राइट। सिमिलरली व्हाट हैज़ इंडिया डन, ठीक है, सो इंडिया का 2020 में फोकस 3 चीज़ पे रहा, राइट, ये मैंने हर्षवी पंत के आर्टिकल से टिपा था। फर्स्ट इज रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकेंड इज कनेक्टिविटी एंड थर्ड इज सिक्योरिटी, ठीक है। सो इंडिया सेंट्रल पॉलिसी इज फॉर्म्ड ऑन 3 मल्टीपल फ्रंट्स, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, राइट, तो इस तरीके से। फिर देखो कहीं मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, चाइना लॉन्चेस 5+1 फॉर्मेट मीटिंग्स विद सेंट्रल एशिया, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, हाउ इज चाइना चैलेंजिंग द इंडियाज हेजीमनी, तो उसमें मैं एग्जांपल दे दूंगा कि चाइना का 5+1 फॉर्मेट, बस अब ज़्यादा नहीं पढ़ना क्या है 5+1 फॉर्मेट वगैरह, थोड़ा सा देख लो बस, क्योंकि चाइना सिविल सर्विस थोड़ी ना दे रहे हो, राइट, तो बस ये आपने लिख दिया, ठीक है। देन इंडिया ट्रेड विद रीजन अमाउंट्स टू जस्ट 2 बिलियन, राइट, और चाइना का कितना है 100 बिलियन, अब सोच लो, ये एग्जाम्पल दिया जा सकता है, ठीक है। सो अनहोली नेक्सस ऑफ पाक रीजन, ये बहुत ज़्यादा डेंजर की बात करते हैं, राइट, तो ये चीज़ आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। इंडिया स्टिल रिमेन्स अ मार्जिनल प्लेयर इन द रीजन विद मिनिमल इन्फ्लुएंस कंपेयर टू रशिया, चाइना, टर्की एंड ईरान, ये आपने लिख दिया सेंट्रल एशिया पे। और क्या चाहते हो भाई, व्हाट डू यू वांट, देन टॉक अबाउट इंडिया चाइना, इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल बनी इन 2020, राइट, रिसेंटली ऑन वेडनेसडे जयशंकर जी प्रपोज दैट स्ट्रैटेजिक छाबार पोर्ट ऑफ ईरान टू बी लिंक टू INSTC कॉरिडोर, राइट, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। देन कंक्लूजन, अब मैंने S जयशंकर जी के स्टेटमेंट को चाप दिया, एज वी बिल्ड द मॉडर्न आर्टरीज ऑफ कॉमर्स इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आर ऑब्जर्व्ड, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इज ऑफ हाइएस्ट अमंग देम, इज फॉरमोस्ट अमंग देम, राइट, तो ये चीज़ है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट कनेक्टिविटी बिल्डिंग इज पार्टिसिपेटिव, डेमोक्रेटिक, कंसेंशुअल एक्सरसाइज एंड इट इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल वाइबिलिटी, ठीक है, लोकल ओनरशिप, दे मस्ट नॉट सर्व अदर एजेंडा, तो ये आप चाइना के कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकते हो, बट एक ठीक है। उसके बाद एक और कंक्लूजन क्या हो सकता है, इंडिया मस्ट रीडबल इट्स एफर्ट्स इन एरिया ऑफ कनेक्टिविटी, ठीक है, इस टाइप की बात कर सकते हो, ठीक है। फिर इंडिया नीड्स टू वर्क एट मल्टीपल फ्रंट्स बोथ ऑन इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक टर्म्स, ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है रोल ऑफ SCO, ठीक है, रोल ऑफ SCO, यूरोपियन एशियन इकोनॉमिक यूनियन, CICA, these can serve as a platform for sustained engagement and regular exchange of ideas, तो इनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, राइट, इफ़ यू वांट, ठीक है, तो ये लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये चीज़ है, इंडिया मस्ट इंक्रीज इट्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन एड टू द रीजन, प्रमोट क्लोजर P2P टाइज, नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ, कल्चर, क्यूसाइन, टूरिज्म वगैरह, वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात थी वो लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, यू कैन ईजिली राइट, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन यू हैव रिटन, ठीक है। सिमिलरली मैंने और भी थोड़े बहुत नोट्स बनाए हैं, उसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट कि कैसे इंडिया चाइना में डिफरेंस है। इंडिया फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया, वेयर एज चाइना इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ यू कैन से हेजीमनी, ठीक है, हेजीमनी एंड विच इज़ प्योरली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक
टर्म्स, राइट। तो ये आप यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपने सेंट्रल एशिया कॉम्प्रिहेंसिवली कर लिया। अब कुछ भी सेंट्रल एशिया का आता है, सपोज करो आई जस्ट यहाँ पे क्या करूँगा, आई जस्ट मेक अ डिवाइडर एंड आई जस्ट ऐड, सिंपल। कुछ आया तो देख लेंगे, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से करो। सिमिलरली आपने लेटर से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे कुछ लिखा है, कुछ पढ़ा आपने, कुछ आया, कुछ भी आपको लगा इंपॉर्टेंट, तो व्हाट यू कैन डू इज़ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे आपने लिख दिया, ठीक है। हाँ, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, तो देखो ORF के आपने व्यूज़ लिख दिए, मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी क्या है, कहीं से मिली, लिख दिया आपने, छाप दिया, बस ख़त्म। यही मेरे नोट्स हो गए। आई विल नॉट बी सीइंग एनी अदर नोट्स, मैं कुछ नहीं देखने वाला, यही देखूंगा, ठीक है। इनफैक्ट आई हैव इवन रिटन फ्रॉम टॉपर्स कॉपी, टॉपर्स कॉपी में कुछ अच्छा मिल गया, आई हैव रिटन इट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इन फ्री टाइम डू दिस, राइट, यू विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब इंडिया इन द UN सिस्टम आया, तो ये मैंने क्या नोट्स बनाए हैं, ये मैंने नोट्स बनाए टॉपर कॉपी से। सी इंडिया एंड UN, द UNSC डज नॉट रिफ्लेक्ट द जियो पोलिटिकल रियलिटीज ऑफ टुडेज वर्ल्ड, वही तृप्ति मैम की कॉपी से, राइट, which is different from the World War II phase, right, leading to the victories of the P5 countries, and hence India demands reform of UNSC, right, as a reflection of changed power equations at the global platform. तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इस तरीके की आपने बात कर दी, ठीक है। इंडिया क्लेम्स इट्स ओन पोजीशन इन UNSC ड्यू टू इट्स सेकंड लार्जेस्ट यू कैन से डेमोग्राफी, राइट, द ओल्डेस्ट द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस टाइप की बात करते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है, सक्सेसफुल रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुल 70 years ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें लिख दी आपने, ठीक है। फिर उसके बाद हाउएवर इट्स नॉट अ केक वॉक, हाउएवर इट्स नॉट अ केक वॉक, क्यों इट्स नॉट अ केक वॉक, क्योंकि भाई कॉफ़ी क्लब पाकिस्तान बैठा हुआ है हमारा भाई, राइट, तो इट्स नॉट दैट ईजी। अफ्रीकन यूनियन इज डिमांडिंग, ज़्यादा चांसेस है अफ्रीका को मिलने के, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका से तो कोई भी नहीं है, ठीक है, देयर इज अ लैक ऑफ कंसेंसस, राइट, इस तरीके की बात है, ठीक है। P5 इज नॉट विलिंग टू शेयर द प्रोबेबिलिटी पावर, ये देख रहे हैं। एंड देन स्कॉलर अकॉर्डिंग टू रमेश ठाकुर, इंडिया शुड स्टार्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन टू एक्सेलरेटेड एफर्ट, जबकि इसका उल्टा किशोर महबूबनी, ठीक है, ऑन द फ्लिप साइड एनालिस्ट लाइक किशोर महबूबनी सेज रिफॉर्म्स एट UNSC इज लाइक सिसाइफस टेकिंग अ बिग बोल्डर टू द अपहिल जस्ट सीइंग टू फॉल डाउन। तो ये लिख दिया आपने बस, एंड हेंस आपने कंक्लूड कर दिया, ठीक है। रिफॉर्म्स एट UNSC नीड अ स्ट्रॉन्ग कंसेंसस among the global community regarding the future composition of eligibility criteria etc for the mandate realization, ठीक है। तो बस वही बात है, कंसेंसस से होगा जो भी कर सकते हैं, ठीक है। सी तो इनफैक्ट अब UNSC रिफॉर्म पे इंडिया की पोजीशन वगैरह तो इट्स अ गुड आंसर, आप इसी से ही लिख सकते हो, बाकी और कुछ लेटेस्ट आ जाए तो ये लिख दो, राइट। तो ऐसे इफ़ यू मेक योर नोट्स इन अ वेरी वेरी आंसर फॉर्मेट, ठीक है, आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में अगर आप नोट्स बनाओगे, सो आई फील दैट कैन हेल्प यू अ लॉट। सिमिलरली अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ तक पहले किसी का डाउट है, एल्स पेपर एनालिसिस देखते हैं, देन वी विल एंड। एनी डाउट्स? ठीक है, सो लेट्स मूव एंड लेट्स सी द पेपर एनालिसिस, ठीक है। तो जैसे 2020 का मैंने यू आर सीइंग द पेपर, तो पेपर देख के ना आप उससे शॉर्ट नोट्स बना लो, जैसे दिस इज द पेपर ऑफ 2020, आई एनालाइज दिस, एंड इससे आया क्या। तो पेपर 2020 का एनालिसिस देखोगे तो क्वेश्चन क्या था, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव मेथड की लिमिटेशंस पूछी गई थी, लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड इंडियन डेमोक्रेसी ये पूछा गया था, अंडर प्रिविलेजेस पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन द डेवलपिंग कंट्रीज ये पूछा गया था। सिमिलरली लेट अस से 2B में क्या पूछा गया था, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, राइट। सो दी डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस फॉर इंडिया टू मैनेज चाइना चैलेंज, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज क्लेम फॉर UNSC परमानेंट सीट, लो भाई एज इट इज़, अगर जिसने भी तृप्ति मैम का आंसर पढ़ा होता ही कुड हैव छापो दैट आंसर, राइट। एफिशिएंसी ऑफ द नो फॉर्स यूज पॉलिसी, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ तालिबान ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर 2021 ऑल्सो, ठीक है। इंडिया इजराइल कॉपरेशन इन की सेक्टर्स, अब इंडिया इजराइल 1000 बार आता है, राइट। सिग्निफिकेंस रोल ऑफ इंडिया इन शेपिंग द एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, देखो इंडिया इन द वर्ल्ड ऑर्डर बोला था मैंने तुमको, राइट, ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, वही वाली बात, पंचशील, नॉन इंटरवेंशन एंड म्यूचुअल वो, एंड वहाँ पे यू कैन कोट मनमोहन सिंह जी दैट इट इज़ अ 2-way स्ट्रीट रिलेशंस, इस टाइप की बात कर दी। नोटिफल फीचर्स ऑफ अक्सा बिटवीन इंडिया जापान, चलो दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन, ठीक है, बट स्टिल इसको छोड़ सकते थे, ठीक है। फिर लो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन सार्क, रीज़न क्या है बताओ, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रो पॉलिटिक्स इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, राइट,
तो ये तीस्ता वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट वगैरह से रिगार्डिंग आप कर लिख सकते हो, राइट. सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशन, मैप कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इम्पीडमेंट्स इन द सिक्योरिटी इन साउथ एशिया, एज इट इज टॉपिक को ही उठा के उन्होंने दे दिया. सो इवन इफ यू हैव गूगल दीज टॉपिक्स you would find a lot of good stuff and simple. आप अपने नोट्स में टॉपिक नंबर जो भी है यू सिलेबस से उस पर उड़ा के लिख लो, ठीक है. रोल ऑफ आसियान इन पीस बिल्डिंग ये पूछा गया था, ठीक है. रोल ऑफ यूएसए इन WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बताया. वेज टू स्ट्रेंथन नैम ये पूछा गया था, समझो. तो दीज आर वेरी वेरी काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस. ऐसा कुछ नहीं है कि ओ माय गॉड दिस वाज अ ब्लाइंडर, दिस वाज अ बोल्टर, ऐसा कुछ नहीं आया था, ठीक है. बैलेंस ऑफ पावर एंड टेक्निक्स के बारे में पूछा गया था. कोर असम्पशन ऑफ आइडियलिज्म के बारे में पूछा गया था. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ साउथ पूछा गया था, राइट. तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर समवेयर डाउन द लाइन प्रिडिक्टेबल. रोल ऑफ UNFCCC एंड UN एफर्ट्स टू एड्रेस CC पूछा गया था, क्लाइमेट चेंज, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें बोल सकते हो, ठीक है. अब ये हम लोग ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पढ़ते रहते, ठीक है. बट इसमें अगर आपको पढ़ना है तो जस्ट रीड इट फ्रॉम अ लिटिल बिट मोर फ्रॉम यू कैन से ORF वगैरह. अगर आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा. आई टेक एन एग्जाम्पल इन क्लास ऑल्सो. क्लास में हम लोग करेंगे कि हाउ यू शुड बी रीडिंग द आर्टिकल्स, हाउ आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग विद यू अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, राइट. तो यही कोर्स में हम करेंगे. जितने भी थीम्स हैं हर एक पे आपको कंटेंट तो देंगे, लेटेस्ट जो चल रहा है क्या चल रहा है, प्लस हाउ यू कैन इम्प्रूव ऑन देन एंड बेसिकली हाउ यू कैन लर्न द आर्ट so that you then don't need to join the various courses. क्योंकि it should be I feel it should be a very organic and very natural exercise. You should be able to make like this, right? And अपना Evernote पे बनाते जाओ, ठीक है. तो आज से क्या करो, do 2 prerequisite things. First, learn the theory जो मैंने बोला है, ठीक है, 2A वाला पार्ट. Second, in Evernote, make all the topic wise. टॉपिक वाइज आप सिंपली अगर बना के रख लोगे, ठीक है. टॉपिक नंबर 6 है, सपोज करो इंडिया एंड द UN सिस्टम, राइट. टॉपिक नंबर लेट से आपका क्या है, टॉपिक नंबर 7 हो गया, चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर. इसमें कुछ आया आपने लिख दिया, ठीक है. इंडियन फॉरेन पॉलिसी टॉपिक डाल दिया, ठीक है. तो ये आप इस तरीके से बना के रखो. जब आप बना के रखोगे सो व्हाट विल हैपन, इट बिकम्स वेरी 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 ईजी फॉर यू, राइट. बस वही है. इवन देन यू रीड अ लॉट ऑफ टॉपर्स कॉपी, ठीक है. When you read a lot of toppers copy, so what you can do is कुछ भी मिले screenshot लो, paste it, screenshot लो, paste it. बस your content is being ready and daily revise that. Simple, ठीक है. इस तरीके से करो and always make the notes like she has made in answer writing format. Never write stories, never. So can you show the themes? We will click a screenshot. अरे भेज दूंगा यार, उसमें क्या बड़ी बात है, वो पेपर से ही बनाया है, ठीक है. चलो ठीक है, if you want लिख सकता है ये, ठीक है. दिस इज द थीम. एक सेकेंड, ये लो, ठीक है. सी डिकोडिंग द सिलेबस, दिस इज द थीम. इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एज वेल स्टैटिक डायनेमिक, नैम एंड करंट डेवलपमेंट्स. थीम 3 साउथ एशिया, सार्क, लोकीज, बॉर्डर चैलेंजेस, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड ऑल दैट थर्ड वर्ल्ड, जापान, चाइना, US, रशिया, ठीक है. इंडिया एंड UN, इंडियाज़ का रोल, P5 की डिमांड कंबाइंड विद 2A वाला पार्ट. न्यूक्लियर क्वेश्चन, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ट्रीटीज, चेंजिंग न्यूक्लियर पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, ठीक है. इंडिया एंड नेबर, स्पेशली ऑफ पाक इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इंडियन ओशन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए. दिस थीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है. एंड देन ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्डर, इंडियाज विजन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर. बस. तो अप्रॉक्सीमेटली वी विल मीट फॉर 20 ऑड क्लासेस एंड 20 से 25 क्लासेस में देखेंगे जितना हो पाएगा कर लेंगे. सिंपल, ठीक है. तो हर एक थीम को हम लोग टच करेंगे. तो ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ही आपकी सारी की सारी थीम्स से टच हो गया, आपके नोट्स बन गए, आप लोग बनाओगे नोट्स, ठीक है. मैं भी आपको दूंगा, सो इट विल बी 2 बस रेडी हो गया. इन 25 डेज, 20 से 25 दिन के अंदर पूरा 2B मेन डन. देन यार देखो, रटना एंड याद करना तो दैट्स योर कॉल यार. अब आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो यार फिर ये क्या कर सकते हैं यार. आई कैन शो यू द वे. आपके साथ बहुत सारी टॉपर्स कॉपी आई विल बी शेयरिंग विद यू, अ लॉट ऑफ टॉपर्स कॉपी विद यू, राइट. सो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है. आई हैव अ लॉट ऑफ टॉपर्स कॉपी, राइट. सो इज एवरीथिंग क्लियर व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, आई होप, ठीक है. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, राइट. मेक योर ओन पाथ, राइट, ठीक है. चलो देन, इफ यू हैव एनी डाउट्स you can ask in the last 2 minutes, else we'll end the class. From tomorrow, right at 11 AM we'll be meeting, ठीक है. और ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे.
सो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू ऑल, ठीक है, यू विल बी गेटिंग द टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, चाहो तो पढ़ के आ जाना, चाहो तो मत पढ़ना, बट प्लीज़ 2A ज़रूर पढ़ के आना, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस विल बी एन असाइनमेंट बेस्ड कोर्स, दैट इज़ एवरी क्लास के बाद आपको कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे, यू विल बी गिवन सम आर्टिकल्स टू रीड एंड मेक शॉर्ट नोट्स एंड यू हैव टू सबमिट देम बैक, राइट। इफ़ यू डोंट तो फिर यार वो फ़ायदा नहीं है, ठीक है, वरना फिर मैं भी फिर आई विल बी ऑल्सो टेक द कोर्स इन अ वेरी, समझो, इन अ मैनर, इन अ सोफिस्ट वे, ठीक है, वॉट यू वॉन्ट टू हियर, देन आई विल ऑल्सो टीच दैट, ठीक है, रादर देन अ प्लेटोनिक वे, जो करना है, ठीक है। सो प्लीज़ फॉलो दैट। चलो ठीक है गाइस, कल आप सबको मेल आ जाएगा, राइट, सो डोंट वरी अबाउट दैट क्लास का, राइट, एंड देन क्लास के बाद आपको असाइनमेंट्स का भी मेल आएगा, तो किसी का भी कोई डाउट हो तो ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप लोगों से कल एट 11 AM शार्प, तब तक के लिए बाय। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू।